geography is also there, sociology is also there, and PSI are also there. For the BDS guys, 2 people had joined, but for the medical science, we are expecting Chiradeep and Sahil Datta sir to join. So let's start with zoology, guys. We have Rasika and Rupali. They both are Rasika is KS from our batch, and Rupali is KPS from our batch. So these 2 girls are going to discuss what are the expectations from the zoology optional when you are going to have an interview. तो रसिका कोशिश ट्राई करिए इनको ट्रांसक्रिप्ट अपनी डिस्कस करने के लिए, और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जोलॉजी के लिए इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू वो आप डिस्कस कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रसिका को हैंड ओवर करता हूं. रसिका प्लीज. Very good evening, sir. Good evening, everyone. Thank you so much for giving me the chance to be here. जहाँ तक जोलॉजी के एज एन ऑप्शनल बात है, अगर मैं अपना पर्सनल ट्रांसक्रिप्ट में शेयर भी कर दूंगी ग्रुप में, इन माय केस द फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ वाज फ्रॉम जोलॉजी एज एन ऑप्शनल. चेयरमैन सर ने मुझे फर्स्ट क्वेश्चन ही यही दिया था कि यू हैव जोलॉजी एज योर ऑप्शनल एज वेल एज जोलॉजी postgraduate you are. So how does classification work in zoology? So for that part, I started from the very basics. Ki sir, we have broadly classified organisms into invertebrates and vertebrates. And usme invertebrates se I started right from Porifera. And I moved up until Echinodermata and मैंने Chordata तक शुरू किया था classification explain करना. But obviously it's a very vast classification. So sir ने मुझे वहीं पर pause कर दिया था कि okay, that's good, which signifies कि he was satisfied with my classification because I was continuously speaking. So एक मेरा personal tip रहेगा, जब आप interview में present हैं, आप अपनी body language जितनी confident show कर सकते हैं उतनी confident show करें. Each and every one of you has the knowledge, okay, and they know that for sure. What they're actually testing is your presence there as a being. कि do you have the personality कि आपको question पूछा जाए, आपके फेस पर fear नहीं आना चाहिए कि oh God, I need to remember what I have to answer. So having that confidence is the prime thing. So when you become receptive of their questions, आप आंसर देंगे, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी पता कर सकते हैं कि ओके, am I going good or am I in the wrong? The second question I was asked, which was quite unexpected, was that dinosaurs used to exist at one point of time in history. I said, yes, sir, they did. So he asked me, what do you think was the reason that dinosaurs got extinct? Okay. I know majority of you would not be expecting this kind of question in the interview, but it was surprising. And इसीलिए I personally believe कि cumulative knowledge जो आप right from the childhood up until the highest degree you've got accommodate कर रहे हैं खुद में, that will help you. मैं specifically dinosaur extinction पढ़ के नहीं गई थी because obviously I didn't have any idea about it. But then I had read about the facts, I collected them, and I presented it the best I could. I said, yes, sir, the brain capacity was not expanded. Humans क्यों survive कर गए और dinosaurs क्यों exist कर गए? ठीक है? So you can make that thought come up in your mind at that point कि why are we existing? हमारी brain capacity ज़्यादा है. We are not stuck over just one type of food. Okay? So here you can quote कि sir, there was Darwin's theory of natural selection. Those who will adopt, they'll survive. So you can make your answer present in a better way, and it depends upon आपका thought process. Don't be like a layman कि मैंने रट्टा मारा है, इसका ये आंसर है तो मैं यही आंसर स्टार्ट टू एंड पूरा कॉपी बोल दूंगा या बोल दूंगी. ठीक है? zoology से लेके और क्वेश्चन that was asked to me by the experts were, have you ever done dissection on a frog? So I had passed out in 2019. I had completed my master's in zoology in 2021. अभी dissection allowed नहीं होती है, so I explained to him कि sir, on ethical grounds as well as because the species was undergoing a faster pace of extinction, not proper extinction, you can say कि उनका number बहुत reduce हो रहा था. That's why it has stopped and I didn't do it. But he was very reluctant
that specialist कि नहीं आपने तो की होगी dissection. And I explained to him, no sir, we have done dissection on fish, on earthworm, on cockroach and prawn. So when you know you haven't done anything, don't try to go and be like नहीं मुझे आता है तो I'll keep on telling them. आप एक ऐसे पॉइंट पर जाके फंसेंगे कि then you'll be like मैंने झूठ बोला. And they'll pick on it. It's not like they're dumb sitting there. Okay, so don't ever try to make a mockery of them and think that you are very over smart. They'll pick on it. Zoology ko leke another question which I was asked was about the chambers of heart. How many chambers of hearts we have got? ठीक है. Then amphibians में कितने थे? Reptiles में कितने थे? Was there any exception to it? And how did the evolution of the chambers of heart came? रूपाली कह रही है मेरे को सुनाई दी. These were the specific questions from zoology. रूपाली की आवाज आ रही है. Okay. Other than this, I can share my transcript since in my introduction itself, I had mentioned that I did my bachelor's from 2016 to 2019 and passed out my master's in 2021. So the questions were focused upon what I had told them in my introduction. In my chairman sir had asked me specifically, what did you do for dissertation? What was the topic of your dissertation? Did you do something? So I specifically explained to him, no sir, dissertation wasn't there in our course. There were specialization subjects. Moreover, we were the COVID batch. So since I had presented those facts and figures, and another thing to add, I had mentioned that our masters had started in September Q because of Article 370. Correct? So those were the points they picked on and the questions were asked on these things. Sir asked me, what do you know about Article 370? I explained a tad bit about that. And then he asked me, there used to be Constitution of Jammu and Kashmir. What do you know about it? Why I'm telling you this is because the things you say in your introduction only are going to be the base for the questions that they'll ask. Extra questions पूछे जाएंगे optional से या नहीं, that is the second thing. First thing is कि आप अपना introduction में क्या बोल रहे हैं. Each and every word that you're saying matters and do realize this. If somebody, मुझे पता है बहुत बच्चों की hobbies नहीं होंगी, so people would be writing, anything which comes to their mind कि meditation करते हैं, yoga में interest है, and then you'll be like पढ़ लेंगे. आप पढ़ लेंगे, लेकिन वो किस level तक पूछेंगे ना, आप उसके लिए mentally prepare नहीं होंगे, and वो second question में ही pick कर लेंगे that this is not your hobby and you've just written it for its sake. Exactly. That's it from my side. अगर zoology को related कोई question होगा, I'll be here to answer. रसिका मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू हियर कि आपने अपना टाइम निकाला. एक क्वेश्चन एक्चुअली प्रीवियस चैट में था जूलॉजी के लिए, शायद किसी ने अभी तक आंसर नहीं किया, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए. ये किसी बच्चे ने लिखा था कि ही हैज डन एमएससी जूलॉजी एंड हिज ऑप्शनल इज सोशियोलॉजी एंड ही वांट्स टू आस्क कि व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम जूलॉजी एंड हाउ मच शुड आई प्रिपेयर as I have done my master's long time ago and have no touch with the subject anymore. Can you please suggest some sources for quick revision if any? तो क्वेश्चंस तो आपने शायद बता दिए हैं, एक जनरल डाउट जो है अगर आप इसको एड्रेस कर दें रूपाली मैम एंड रसिका जी. Sure sir. Sir, since he or she has done masters in zoology, तो I personally believe कि zoology का hold होना बहुत जरूरी है. Exactly. It doesn't matter कि आपका optional subject आपने change किया. And the foremost thing which I personally believe is जिन लोगों के masters subjects उनके optional subjects से vary करते हैं, they need to work double. Exactly. Because they have to. The first question they'll ask is, why did you not opt for zoology as an optional? Exactly. Be prepared with the answer. You have to justify why you haven't selected zoology as an optional. ठीक है, अगर प्रीवियसली zoology ऑप्ट किया था, मार्क्स कम आए हैं, अगर ऐसा केस है, then be honest and present the facts. Then they will ask you, why did you change it? Sociology में इतना better क्या है? What is your perspective on it? And they are not gonna stop asking you questions just because it's been long since you've done it. Masters के related level के questions पूछे जाएंगे. And quick sources for revision, I think so best होता है आपके masters के जो notes आपके पास available होंगे, because I know masters के बच्चों के पास notes available होते हैं, तो आप उनसे quickly go through कर लीजिए. And still
कोई रेफरेंसेस चाहिए होंगी, द बिगेस्ट रेफरेंस इज गो फॉर पाथफाइंडर पब्लिकेशंस की बुक which people study for while preparing for CSI and JRF exam. Pathfinder is a great source for revision. And still अगर किसी को कोई doubts हैं कुछ sources को लेके, they can ask them in the group. I'll try to reply. Okay मैम, थैंक्स, इसका मैंने रिप्लाई कर दिया इनको पाथफाइंडर रिसोर्स के लिए। थैंक्स मैम। नाउ आई रिक्वेस्ट रूपाली मैम। रूपाली मैम, यू आर वेलकम। तो आप भी अपनी जो फाइंडिंग्स हैं वो शेयर कर दीजिए। रसिका मैम, इफ यू कुड जस्ट शेयर योर ट्रांसक्रिप्ट्स ओवर हियर, अगर आपके पास हो। रूपाली मैम, आप बताना चाहेंगे? I think रूपाली मैम शायद she is not able to hear. एक सेकंड। Rupaling is texting me that she is not able to join, so she is trying to reconnecting it. Just wait. ठीक, we'll wait for some. हम जो आपने मेडिटेशन वाला बताया है, तो अभी जो मैं बच्चों के ड्राफ्ट्स रिव्यू कर रहा हूँ, तो बहुत सारे बच्चों ने मेडिटेशन लिखा हुआ है। नॉर्मल सिर्फ मेडिटेशन ही लिखा हुआ है, तो मैंने भी उन्हें यही रिप्लाई दिया है कि मेडिटेशन थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें, और अगर सच में करते तो ही लिखिए। ये कॉमन चीज़ है, बच्चे हॉबी में कुछ भी लिख रहे हैं। Exactly, sir. Rupali ma'am, can you unmute your mic and can speak? You can speak. I guess you are joined. और रजत, वी कैन टेक अनदर पार्टिसिपेंट एंड देन जब रूपाली मैम ज्वाइन करते हैं तो फिर हम उनके Yeah, we can. So we have Shreya with us. She's having botany as an optional. So Shreya ma'am, can you share your interview experience and the important topics, what needs to be focused for this interview, JKS interview? Welcome, Shreya ma'am. Thank you so much, sir. Hello, everybody. Shreya Approach this side. Good evening, and I hope everybody is doing great. तो मैं अपनी जो इंटरव्यू प्रेपरेशन है उसकी जो भी ट्रैजेक्टरी थी मैं उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके आपको एक बार जस्ट गो थ्रू दे देती हूँ कि कैसे कैसे मैंने प्रिपेयर किया था। सो मैंने इसको 3 सब पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला जो पोर्शन था वो मैंने ये नोट्स क्रिएट किए थे जो क्रिस्प नोट्स थे जिसमें आई, मी और माई सेल्फ था। इसमें मेरे बारे में सब कुछ चीज़ें जो भी थी वो मैंने एनलिस्ट करी थी अबाउट माई एजुकेशन, मेरे एकेडमिक डायनेमिक्स, मेरे प्रोफेशनल डायनेमिक्स, मेरे पर्सनल डायनेमिक्स, मेरे से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनके पर्टेनिंग जो भी स्पेसिफिक कस्टमाइज डायनेमिक्स हैं वो सारी चीज़ें मैंने जॉट डाउन करी थी। तो ये आई, मी एंड माई सेल्फ में ये सारी चीज़ें थी। जो सेकंड पोर्शन था ना, बड़ा चंक जो था वो बॉटनी का था, क्योंकि सिंस मेरी मेरी ग्रेजुएशन में भी केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी था, फिर मेरी एमएससी जो थी वो भी बॉटनी से हुई थी, और फिर मैं जो वो करी थी डॉक्टरेट करी थी, पीएचडी करी थी, वो भी बॉटनी में थी। तो सिंस बड़ा ये प्रोग्रेसिव सा था तो इसलिए बॉटनी मुझे था कि ज़्यादा क्वेश्चन जो थे होंगे वो मैंने एंटिसिपेट किया था कि बॉटनी से ही होंगे, और इवेंचुअली वही चीज़ जो है वो हुई थी। तो इसलिए बॉटनी पे मेरा सेकेंड मेजर फोकस था। और तीसरा जो था वो था करंट अफेयर्स वाले टॉपिक्स जो हो गए वो। और मैं एक चीज़ यहाँ पे ये भी बोलूँगी कि जो आई मी माई सेल्फ था ना, इसमें मेरे जितने भी जो मेरे एल्मा मैटर्स रहे हैं ना, जितने भी, जो मेरा स्कूल है, जो मेरा कॉलेज है, जो मेरी यूनिवर्सिटी है, उसके परटेनिंग सारे करंट अफेयर्स वाले टॉपिक्स जो थे वो मैंने कवर किए थे। फॉर एग्जाम्पल इंस्टेंस, जैसे सपोज मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से
पीएचडी बॉटनी करी थी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन से एक्ट से एस्टैब्लिश हुई है, 2009 वाला एक्ट, उसका वाइस चांसलर कौन होता है, विजिटर कौन होता है, प्रेसिडेंट का क्या रोल रहता है, फॉर ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं पूरे इंडिया में। जब आप एक क्वेश्चन का थ्रेड उठाओगे ना, उसके साथ ही कैस्केड में ना एक के बाद एक क्वेश्चन आपको खुद ही जो है रियलाइज होते जाएंगे, और उन्हीं को आपने जॉट डाउन करना है। आई मी एंड माई सेल्फ में फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने ये किया था। फिर कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनके हेड्स जो हैं कैसे अपॉइंट होते हैं। वैसे ही जैसे गांधीनगर कॉलेज से मेरी ग्रेजुएशन हुई है, तो उसका जो नया उसको बैप्टाइज किया गया, री क्रिश्चियन किया गया ना उसको, पद्मा श्री सचदेव कॉलेज, तो वो कौन थे, उनके साथ एसोसिएटेड चीजें जो भी हैं, वो डोगरी लिटरेचर में क्या क्या उन्होंने लिखा था, साहित्य अकेडमी मिला था, कब मिला था, और कितने लोगों को मिला था, क्या क्या उनके क्रिएशंस है, लिटरेरी वर्क्स क्या है, बार्डिक वर्क्स क्या है, वो सारी चीजें आप साथ साथ में ही कर सकते हो। तो एल्मा मैटर्स हो गए, आपके खुद के बारे में सब कुछ चीजें, पर्सनलाइज जो भी आपकी चीजें ना, वो उसमें हो गया। और जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं वो तो जेनेरिक है। कोई भी करंट अफेयर्स मैगजीन उठा के 1 या 2 3 महीने के आप थोड़ा सा भी उसको क्रिस्पली रिवाइज कर दोगे तो वो हो जाएगा। मैं एक बार आपको जो मेरा ट्रांसक्रिप्ट है ना, वो मैंने मेरे ख्याल से शेयर किया हुआ है ग्रुप में आई गेस, तो उसी से परटेनिंग जो भी है ना वो मैं बता देती हूँ आपको। फर्स्ट जो क्वेश्चन मेरे को था, जैसे एज रसिका ने बहुत अच्छे से उसको चीज को मेंशन किया था कि उन्होंने सेम क्वेश्चन जो है वो मुझे पोज किया था कि आपका डिसर्टेशन में, जो चेयरमैन सर थे उन्होंने डायरेक्टली ये पोज किया था कि आपका जो डिसर्टेशन प्रोजेक्ट था वो कुछ था। तो मेरा बेसिकली डिसर्टेशन प्रोजेक्ट एमएससी में था कि हमने निकल का एक्सटीन्यूएशन जो है वो स्टडी किया था मेज में, तो हैवी मेटल स्ट्रेस के केस में। तो उन्होंने वहां से निकल के रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो शुरू किया था, जो थ्रेड था ना वो वहां से शुरू हुआ था। उन्होंने सबसे पहले पूछा कि निकल जो है वो क्या है, क्या ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है या ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है, फिर उसके बाद इसका रोल क्या होता है प्लांट में। फिर उसके बाद उन्होंने ये पूछा कि हैवी मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, और हैवी मेटल्स का रोल जो है वो किस तरह से होता है। उसके बाद फर्दर वो आगे क्योंकि मैंने बोल दिया था कि क्योंकि मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में ना सारी चीजें बता दी थी कि मैंने ये किया है, ये क्या है। और एक चीज मैं आपको और बता सकती हूँ कि जब आपकी इंट्रो है ना, अगर वो ज्यादा इम्फेटिक होगी ना, तो वो आपके कोर पे ही आएंगे। क्योंकि जैसे उन्होंने मेरे से हॉबीज के पर्टेनिंग कुछ भी नहीं पूछा था, कोई हॉबी नहीं, पर्सनल चीज कुछ भी वो उसमें नहीं गए थे, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में ही ना, और जो भी आपकी अचीवमेंट्स है ना, अगर आप उनको भी थोड़ा सा प्रोजेक्ट कर सकते हो इंट्रोडक्शन में, और डिफेंड कर सकते हो, दोनों चीजें आप उनको प्रोजेक्ट भी कर सकते हो और डिफेंड भी कर सकते हो, और आप कॉन्फिडेंट हो तो आप, मुझे लगता है, उसको एम्फेटिकली पोज कर सकते हो। सपोज मैंने ऐसे बोला था कि मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें हुआ है, मेरी डॉक्टरेट हुई है, उसके अलावा मैंने CSIR नेट, ICAR नेट, JK सेट, गेट और DST इंस्पायर स्कॉलर में हूँ, और ये सारी चीजें मैंने क्वालिफाई की हुई हैं। तो ये सारी चीजें मैंने उनको पहले से ही बता दी थी, तो इसलिए वो सिर्फ बॉटनी के पर्टेनिंग क्वेश्चंस होते हैं ना, उसी से उन्होंने वो थ्रेड शुरू किया। तो ये आप अपना मैनूवर कर सकते हो इंटरव्यू, जिस डायरेक्शन में आप चाहते हो कि वो पूछें। और फिर वो पर्सनल हॉबीज में आते ही नहीं है, लेकिन जब उनको कुछ नहीं मिलता ना फॉर्डर, तो फिर वो आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स इन सारी चीजों में, या फिर एनालिटिकल क्वेश्चंस में थोड़ा घूमेंगे। इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन था ना, वो उन्होंने एक उसमें से एक जो बोर्ड मेंबर थे ना, उन्होंने बहुत ज्यादा वो ड्राई और डायरेक्ट डायबोलिक क्वेश्चंस पूछे थे। जैसे वो ना पूछा था कि UN डे कब होता है, वो बड़े फैक्चुअल टाइप के, UN डे कब होता है, UN हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, तेंदुलीज को आप किसके लिए यूज करते हो, सेक्रेड रूफ्स क्या होते हैं, सेक्रेड रूफ से एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, नेशनल ये बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कहाँ पे सिचुएटेड है। इसके अलावा बस इस तरह के ना डायरेक्ट स्ट्रेट ब्लैंड क्वेश्चंस वो पूछते हैं, और वो सिर्फ ये देखने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्या आप वहां पे फ्लिम्जी हो जाते हो नहीं। अगर आप थोड़ा भी इंटिमिडेट हो जाते हो तो उसके बाद जो है वो वहां पे उस चीज को ना गेज कर लेते हैं। तो वहां पे बस कॉन्फिडेंट रहना, अगर आपको नहीं आ रहा है तो ग्रेसफुली आप नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर शिफ्ट कर जाना। ये सेकंड मेंबर ने पूछा था। उसके बाद मोस्ट क्वेश्चंस फिर PhD के पर्टेनिंग ही थे, उसमें मेरा सिमुलेशन वाला पोर्शन था, उसका पूछा था उन्होंने थोड़ा सा। उसके बाद एक क्वेश्चन जो मैं ऑलरेडी प्रिपेयर करके गई थी वो यही था कि आप एकेडमिक, अगर इतने आपका एकेडमिक है इतना बैकग्राउंड, तो आप क्यों शिफ्ट करना चाहते हो इसमें एग्जैक्टली। एडमिनिस्ट्रेशन में। ये क्वेश्चन था, ये मुझे पता था पूछेंगे, तो इसको जो आपको पता है कि एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस है ना, वो पहले से प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद जो दो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने, और फिर उन्होंने ना ये भी कुछ पूछे थे, एवरग्रीन क्या होता है, रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, केमिस्ट्री बॉटनी में क्या इंटर रिलेशनशिप है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
और फिर जो 2 एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बॉटनी को टच नहीं किया था, उन्होंने एडमिन वाले क्वेश्चंस पूछे थे। जैसे उन्होंने मुझे फिस्कल रेवेन्यू डेफिसिट में वो पूछा था, आप डिस्टिंक्शन कर दो अगर आप कर सकते हो तो। फिर जो सेकंड एक मैम थे उन्होंने पूछा था कि आपके जर्नल्स कौन से हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपकी जिसमें आप कर रहे हो वो कौन से जर्नल्स को कंसिडर करते हैं, इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है उनका, साइटेशन इंडाइसिस कौन से आप जो है वो यूज करते हो। और एक उन्होंने पूछा था कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है उसका क्या रोल है। और लास्ट क्वेश्चन मेरा मेरे ख्याल से था कि ये फूड प्रोसेसिंग का स्पिन ऑफ था कि हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में होता है। तो ये इसमें था। और डैफ बाकी ना जो भी आपका, मैं ये आपको सजेस्ट करूंगी कि जो अगर आपकी कोई पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्शन है, जैसे ग्रेजुएशन में मेरी सेकंड पोजीशन थी तो मैंने वो मेंशन किया था, कोई इवेंट हेड है जिसमें आपने कुछ परफॉर्म किया है, जैसे जो भी आपके एनुअल फेस्ट होते हैं अगर आप किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में हो तो वहां पे वो आप मेंशन कर सकते हो। कोई आपको जो कॉन्फ्रेंस में जैसे वेबिनार में आप मेंशन कर सकते हो, या कोई कॉन्फ्रेंस आपने अटेंड किया उसमें कुछ हुआ है, तो ये प्रोजेक्शन से आपको ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं अनडाउटेडली, तो इनको मिस मत करना। और तो कुछ नहीं है, बाकी अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैं आंसर कर सकती हूँ। थैंक यू। थैंक्स शिया मैम, आई थिंक कि आपने तो काफ़ी सारे एस्पेक्ट जो थे कवर कर दिए थे। बच्चों को यहाँ पे एक प्रॉब्लम्स आ रही थी जो मुझे लग रहा है कि अपार्ट फ्रॉम बॉटनी जो आपने एड्रेस किया है कि जैसे ये कुछ अवार्ड्स वगैरह जो मिले होते हैं प्लस थोड़ी सी सेकेंडरी चीज़ें, तो काफ़ी बच्चे से सोच रहे थे कि इन्हें हम इंट्रोडक्शन में बताएं या फिर अभी स्किप करें और फिलहाल इनको हम बस अपने डैप में ही लिख के रख दें। तो वो हमें एक नई फाइंडिंग यहाँ से मिली है कि आप हाँ लोग जी। जो भी आपके वैसे ब्राउनी पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि अपने इंटरव्यू को मैन्यूवर करने की, और इनिशियली आप इंट्रो से ही अगर उन्हें बताना स्टार्ट कर दें तो वो आपके फेवर में जा सकता है। और कई बार तो हमने ऐसा भी देखा बाकी टॉपर्स के साथ कि उनका डैफ भी ज़्यादा खोल के नहीं देखा गया, तो अगर हाँ आप जी। उनको वहीं से इंटरेस्ट क्रिएट करवा देते हैं तो दे वोंट गो मच इन डेप्थ। तो मैम बहुत अच्छा था, मैम का जो प्रोफाइल है ये आई बिलीव कि बिल्कुल इनका पीएचडी लेवल तक की बॉटनी का है, तो इनको इसलिए सिर्फ बहुत इन डेप्थ कोर क्रिस्प चीज़ें पूछी गई है। इनफैक्ट काफ़ी फैक्चुअल भी इन्हें पूछा गया। जो कुछ फैक्चुअल डेट्स वाला था कि यूएनडीपी, वो तो मुझे लग रहा है कि 2 पैनलिस्ट हमारे वैसे होते हैं जिनका काम ही यही है, वो तो या तो फ़ोन या डायरी में से, मतलब उनका टाइम होता है कि आपके, उनका ये होता है ऑब्जेक्टिव कि 2 मिनट आपके लगाने ही लगाने हैं। तो 2 मिनट में अगर आप जल्दी-जल्दी रिप्लाई करोगे तो आप उतने ज़्यादा क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे। तो आपने बस अपना जो स्ट्रेस है, काम है, उसे लूज़ नहीं करना है, एंड यू हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट एनालिटिकल क्वेश्चन। थैंक्स मैम। मैम अगर आप कोई इन्हें सोर्स बताना चाहें फॉर क्विक रिवीजन और फॉर करंट अफेयर्स, मतलब अभी थोड़े दिनों में जो इन्हें ब्रशअप करनी है चीज़ें, क्या ये अपने रेगुलर नोट्स ब्रशअप करें बच्चे, या फिर कुछ एनालिटिकल करें, या जो पढ़ा है उसी को फ्रेम करने की कोशिश करें? सो आई गेस अगर ऑप्शनल के कुछ छोटे छोटे पॉइंटर्स में नोट्स बनाए हैं तो वो बेटर रहता है। अदरवाइज ये अरेंज पब्लिकेशंस हैं इनके अच्छे होते हैं। पाथ फाइंडर पब्लिकेशन जैसे मेंशन किया था रसिका ने, वो भी बहुत जी जी। सही है क्योंकि उसमें क्रिस्पली उनको सब कुछ मिल जाएगा। प्रदीप पब्लिकेशंस की भी आई गेस एक बुक आती है, तो अगर ग्रेजुएशन लेवल के भी उनको मिल जाते हैं ब्रीफली, जिसमें सिर्फ पॉइंटर्स दिए हों, क्योंकि उसमें लास्ट में ना हर एक चैप्टर के बाद एक की फैक्ट्स का पेज होता है। अगर खाली वही गो थ्रू कर ले तो मेरे को लगता है मेजर मेजर कॉन्सेप्ट्स वहीं से कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि इन्हें बॉटनी के लिए भी पाथ फाइंडर ही रेफर करना है। ठीक है मैम, थैंक्स अलॉट। आई थिंक कि आपने बहुत थैंक यू। डे वन से आप बच्चों को गाइड कर रहे हैं। आपने पहले भी मुझे लग रहा है बॉटनी का काफ़ी ज़्यादा बच्चों को बताया, तो नाउ आई थिंक कि कोई भी बच्चा ऐसा बॉटनी का नहीं बचा होगा हमारे पास जिसका कोई भी डाउट अभी तक बचा होगा। थैंक्स मैम। रजत, आप हैंड ओवर कीजिए हमारे नेक्स्ट एक्सपर्ट के लिए। So, thanks Shreya and thanks Rasika. हमारे पास अभी right now Akhil sir, Shivek sir and Tejinder sir. All these three guys are from PSIR. अखिल बाबू सर का हमने लास्ट सेशन में ट्रांसक्रिप्ट डिस्कस किया था और उन्होंने बताया था किस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हमें PSIR के लिए फोकस करना है। बट टुडे आई रिक्वेस्ट शिवेक सर एंड तेजिंदर सर टू शेयर देयर इंटरव्यू एक्सपीरियंस और उनके हिसाब से किन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को फोकस किया जा सकता है एज पर PSIR इज कंसर्न। सो शिवेक सर, हैंड ओवर टू यू। वेलकम शिवेक सर। थैंक यू सो मच राजा सर, विशाल सर। एक्चुअली मेरा थोड़ा इंटरव्यू का थोड़ा डिफरेंट तरीके से ही बताता हूँ मैं, बिकॉज आई थिंक अभी तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें जो हैं वो अभी तक डिस्कस हो चुकी हैं, बट
कुछ ऐसी चीजें जो मुझे पर्सनली लगता है कि इंटरव्यू में हमें देखना है विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, बिकॉज ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जनरली IR से क्वेश्चन बाकी बच्चों को भी आएंगे, तो इट वोंट बी स्पेसिफिक विद रिस्पेक्ट टू जिनका PSIR ऑप्शनल है। तो ऐसे कोई ट्रांसक्रिप्ट तो है नहीं मेरे पास, बट आई रिमेंबर माई इंटरव्यू, थोड़ा डेफ में पता है क्या क्या पूछा था। तो आई थिंक द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज जो हमें करनी चाहिए वो हमारा इंट्रोडक्शन होता है, और हमें अपने इंट्रोडक्शन को क्रिस्प, शॉर्ट और टू द पॉइंट बनाना। उससे क्या होगा कि जो आपके जो इंटरव्यूअर हैं उनको आपके बारे में एक हल्का सा ब्रीफ पता लग जाएगा कि कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछना है। जैसे विशाल सर ने पहले भी बोला कि कुछ ऐसे बच्चे थे जिनका डैफ जो है वो चेक भी नहीं हुआ है, तो आई थिंक उनमें से मैं भी एक था, क्योंकि लिखा काफी सारा था मैंने। बट द मोमेंट आई स्टार्टेड माई इंट्रोडक्शन, तो जैसे ही मैंने बोला कि मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है एंड आई स्टार्टेड इन, मैंने कहा कि मास्टर्स इन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, तो लकीली शायद चेयरमैन सर भी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में ही, तो उन्होंने वहां पे पकड़ लिया मुझे। तो जस्ट टू चेक माय कॉन्फिडेंस ही स्टार्टेड आस्किंग मी अबाउट आपका फीस स्ट्रक्चर क्या था, आपके हॉस्टल में कितने थे, तो मतलब मुझे कंफर्टेबल कर रहे थे। एंड देन ही स्टार्टेड आस्किंग मी अबाउट सर्टेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो जिनका भी सिविल इंजीनियरिंग है या ट्रांसपोर्टेशन या मास्टर्स जिनकी भी है, उनके लिए मैं बस इतना कहूंगा कि इन डेप्थ नहीं पढ़ना, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जैसे कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन है, ठीक है, रेशियोज पता होने चाहिए। अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग ऑप्शनल है तो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज, उनका कैरेज विड्थ क्या होती है, वाटर बाउंड मैगडम क्या है, ठीक है, ऑल वेदर रोड्स क्या हैं, ठीक है, एक्सप्रेस वे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज, इनकी लेंथ किस तरीके से डेजिग्नेट होते हैं, जो अभी न्यूज में भी है, क्योंकि अभी एक बज़वर्ड चल रहा है मैगडमाइजेशन ऑफ कश्मीर, तो अकॉर्डिंगली वो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आफ्टर दैट इंटरव्यू चला तो चेयरमैन सर ने ये सब क्वेश्चन पूछे, एंड देन मोस्टली क्वेश्चन मेरे PSIR ऑप्शनल के रेस्पेक्ट में। सबसे पहला क्वेश्चन आई थिंक जो PSIR वालों को प्रिपेयर करना ही करना है, क्योंकि उनका फेवरेट क्वेश्चन होता है जस्टिस। तो जस्टिस के ऊपर पहला क्वेश्चन आ जाएगा, वो शायद मोस्टली क्वेश्चन आपसे करेंगे कि व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो व्हेन दे स्टार्टेड आस्किंग मी, तो आई स्टार्टेड विद द कोट ऑफ जॉन रॉल कि जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ एनी सोशल इंस्टीट्यूशन, जस्ट लाइक ट्रुथ इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ एनी सिस्टम ऑफ थॉट। तो वहां से फिर डिबेट आगे बढ़ती गई। देन दे स्टार्टेड आस्किंग मी अबाउट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को बोला गया, फिर डेमोक्रेसी के बारे में पूछा कि उसके मॉडल्स कितने हैं, प्रोटेक्टिव है, डेवलपमेंटल मॉडल है, जो PSIR ऑप्शनल के अंदर आपको पता लग जाता है जिनका भी ऑप्शनल है। देन उसके बाद डिबेट शुरू हुई लिबर्टी पे, और फिर वहीं से उन्होंने हिजाब कंट्रोवर्सी पे क्वेश्चन शुरू कर दिया। देन दे स्टार्टेड आस्किंग अबाउट अफगानिस्तान क्राइसिस। देन दे स्टार्टेड आस्किंग मी अबाउट कि वेदर डेमोक्रेसी कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन गन पॉइंट और नॉट, ठीक है। तो ये सब डिबेट्स हुई। जो PSIR ऑप्शनल है, मैं अगर आप मेरे से सजेशन लेंगे कि क्विक वे में कैसे उसको तैयार करना है, तो आई थिंक यू नीड टू फोकस ऑन थ्योरी, थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। इस पे आपको पहले बेस बना के रखनी है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो होंगे वो थ्योरीज से होंगे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, बिकॉज दे आर गोइंग टू आस्क यू कि आपको किस लेवल तक सब्सटेंशियल वे में डेमोक्रेसी के बारे में पता है कि जस्ट सुपरफिशियल एस्पेक्ट पता है। उसके अलावा आपको अपने जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स हैं उनके ऊपर आपको कमांड होनी चाहिए, बिकॉज ये बिल्कुल भी मत सोचना कि उन्हें पता नहीं होगा हॉब्स के बारे में, लॉक के बारे में, रोसो के बारे में, JS मिल के बारे में। उनको काफी ज्यादा पता होता है और वो इन डेप्थ क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। तो अगर आपने WPT और इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे अगर अच्छी बेस बनाई है तो मोस्टली आपके क्वेश्चन वहां से हो जाएंगे। उसके बाद आपका आता है पेपर 2 जो IR है। तो IR में आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि थोड़ी सी IR थ्योरीज को देख लीजिएगा, जैसे लिबरल स्कूल ऑफ थॉट को देख लीजिएगा, रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट को देख लीजिएगा, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल, पोस्ट मॉडर्निस्ट स्कूल, इनको थोड़ा देख लीजिएगा। और जो भी पोस्ट वर्ल्ड वॉर के जो भी सिनारियोज हुए हैं इंडिया के रेस्पेक्ट में, उन पे थोड़ा हल्का हल्का फोकस देखना है आपको, ठीक है। उसी में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ये जो भी अभी न्यूज में चल रहा है, मतलब जो भी करंट एस्पेक्ट में अभी चल रहा है, आपको उसको देखना है। और उसके लिए बेस्ट वे यही है कि आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िए और वहां से देखिए कि IR के रेस्पेक्ट में भी क्या हो रहा है। जैसे मोदी जी की अभी विजिट्स काफी जगह पे हो रही हैं, इजिप्ट के साथ हमारे रिलेशन क्या है, तो देयर विल बी अ प्रोबेबिलिटी कि वो आपसे पूछ लें, ठीक है। और उसी के रेस्पेक्ट में जो आपका वेस्ट एशिया है, ठीक है, आपका इमीडिएट नेबरहुड है, या लुक वेस्ट और लुक ईस्ट पॉलिसी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज के सिनेरियो में जब इंडिया का जो स्टेचर बढ़ गया है इंडो पैसिफिक रीजन में, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और जब भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपने प्रिपेयर करना है तो मेक श्योर कि आप उसका पॉजिटिव, उसका कुछ थोड़ा सा अगर नेगेटिव एस्पेक्ट है वो भी एक बैलेंस वे में बताएं, और उसको कंक्लूड बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से करें। बिकॉज मुझे याद है जो पैनल एक्सपर्ट थे वहां पे, उन्होंने पूछा कैन डेमोक्रेसी बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन गन पॉइंट, सो दे वर एक्सपेक्टिंग कि मैं बोलूंगा नहीं,
कि नहीं हो सकता है, डेमोक्रेसी कभी हो नहीं सकती, बट आई सेड यस। तो दे वर अमेज्ड, ये मतलब हाउ इज इट पॉसिबल। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि आपने कैसे बोला, तो देन आई एक्सप्लेन देम कि yes it can be मतलब it can be introduced on gunpoint, but however it won't sustain for longer because democracy involve the credentials of reasoning, reciprocity, logical reasoning, burden of judgment, plurality। और फिर वो बात आगे बढ़ी and they were like okay, they were satisfied कि उसने क्वेश्चन को मैनिपुलेट करके एक अच्छा बैलेंस आंसर लाया। तो कभी कभी ना वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपनी क्रिटिकल रीजनिंग मतलब क्रिटिकल थिंकिंग या लॉजिकल वे में आंसर करें, और ऐसा बिल्कुल मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे साथ ये थोड़ा सा हुआ एंड आई वाज अमेज्ड। क्योंकि जब वहां पे एक सेशन जज है, उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछे, उन्होंने बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे मेरे को, बट आई वाज नॉट एबल टू आंसर। जैसे उन्होंने कैग का आर्टिकल पूछ लिया तो मैं थोड़ा फंबल कर गया। आप प्लीज नहीं कीजिएगा, अगर नहीं आता है तो डायरेक्टली कहिए सॉरी सर राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। तो 148 की जगह कुछ और बोल दिया, फिर एक और कुछ आर्टिकल पूछा, वो भी हो गया। तो मुझे लगा कि मेरा काम हो गया खराब, बट लकीली ये हुआ कि बीच में मुजतबा सर थे, तो उन्होंने वो मतलब अपने पास ले आए और देन ही स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चन विद रेस्पेक्ट टू माय डिस्ट्रिक्ट। एक और सजेशन मेरी तरफ से होगी कि प्लीज अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में अच्छे से जान लीजिएगा। आपके डिस्ट्रिक्ट में पॉलिटिकल जो भी चीजें हैं, अगर आपका पीएसआईआर ऑप्शनल है तो पॉलिटिक्स के रेस्पेक्ट में आपके डिस्ट्रिक्ट से कौन अच्छे अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, आपके डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स क्या है, उनकी लिमिटेशंस का क्या क्या कमियां आपको देखने को मिल रही हैं, और अगर कल को आपको मौका मिलता है, ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, तो व्हाट यू विल डू फॉर दैट। तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर है और उसको पॉलिटिकल वे में आंसर करना है, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए तो मतलब लाइक क्वेश्चन बहुत ज्यादा होंगे पॉलिटिकल पार्टीज से। So they may be, अगर कोई भी अभी न्यूज में पॉलिटिकल पार्टी है, then they will start asking you about that particular political party, ठीक है, उसके जो लीडर्स हैं, ठीक है, उनका रोल। तो आपको थोड़ा सा करंट के साथ चलना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के पूछेंगे। अगर जो डेली करंट अफेयर्स जो आपके चल रहे हैं अभी, अगर उसमें कोई भी चीज न्यूज में आ रही है विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिक्स, जैसे अभी मणिपुर क्राइसिस है, तो श्योर हो जाओ कि क्वेश्चन घूम के आएगा ही आएगा उसमें से, चाहे वो डायरेक्टली आए इनडायरेक्टली आए, बट आएगा। चाहे वो फिर एलडब्ल्यूई पे बात करें या जितने भी ये फैक्शंस डिफरेंट फैक्शंस क्रिएट हुए हैं इनके बारे में पूछें, तो क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। और उसके अलावा अपनी हॉबीज, प्लीज जो आपकी हॉबीज हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। आई थिंक जो लिखोगे ना अपनी हॉबीज, वो आपको पूरा पता होना चाहिए, बिकॉज वो आपको लिटरली इन डेप्थ पूछेंगे। मैंने अपनी हॉबीज में वेट ट्रेनिंग लिखा था, तो डिबेट शुरू हुई स्टेरॉइड्स पे, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेरॉइड्स, क्योंकि बेसिकली वी वोंट एक्सपेक्ट कि यार इतना ज्यादा डेप्थ में पूछेंगे, बट दे स्टार्टेड आस्किंग मी एंड आई वाज प्रिपेयर्ड। मुझे पता था आएंगे क्वेश्चन। फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में पूछा, एनाबॉलिक के बारे में पूछा, फिर मसल एनाटॉमी के बारे में पूछा, ठीक है, फिर उसमें रोल ऑफ टेंडन पूछा। तो मतलब थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं मैंने देखा, उनकी वेट ट्रेनिंग, बॉडी बिल्डिंग, ये सारी उनकी हॉबीज होती है, बट वो सिर्फ उसको सुपरफिशियली कवर करते हैं। आपको थोड़ी सी मसल एनाटॉमी के बारे में पता होना चाहिए, स्टेरॉइड्स के रोल के बारे में पता होना चाहिए, पुश मूवमेंट, पुल मूवमेंट, लिटरली उन्होंने ये सब पूछा। उन्होंने एनाबॉलिक एक्सरसाइजेस पूछी, कैटाबॉलिज्म पूछा, मतलब दे ट्राई टू ग्रैब ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ माय हॉबी। फिर अगर जैसे आपने एक्स्ट्रा हॉबी लिखी है, जैसे मैंने हॉबी लिखी थी वॉचिंग हिंदी वेब सीरीज, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, जब भी आप हॉबीज लिख रहे हो तो बी स्पेसिफिक विद योर हॉबीज। अगर आपको वेब सीरीज देखना पसंद है तो आप लिख लोगे कि वॉचिंग वेब सीरीज, बट अब उसमें इतना ब्रॉडर डोमेन है, उसको कैसे कवर करोगे आप। मे बी उन्होंने कोई हॉलीवुड की वेब सीरीज आपको पकड़ ली और वहां से उसके डायरेक्टर पूछ लिया, उसका रोल पूछ लिया, तो आप तो फंस जाएंगे। तो आई थिंक बी स्पेसिफिक विद योर हॉबीज। तो उसमें मैंने स्पेसिफिकली लिखा था वॉचिंग हिंदी वेब सीरीज, और वहीं से फिर क्वेश्चन बने अबाउट ओटीटी, डिजिटल मीडिया गाइडलाइंस, इंटरमीडिएट गाइडलाइंस, और फिर वहां से मुझे पता था यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो आई वाज रेडी फॉर दैट। एंड अगर आप अभी रिसोर्स लिस्ट पूछेंगे पीएसआईआर की, लेट मी टेल यू वन थिंग, आप सिर्फ, फिर मैं दोबारा बोलता हूँ, 4 चीजों पे फोकस कीजिए, इससे बाहर नहीं जाएगा। एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स पे कमांड बनाइए वापस से, बिकॉज दे विल आस्क यू क्वेश्चन विद रेस्पेक्ट टू वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स जैसे गांधी जी हैं, एमएन रॉय हैं, अरविंदो घोष हैं, ठीक है, आपके बाबा साहिब अम्बेडकर जी हैं, तो इन सब से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, आफ्टर दैट थ्योरीज को एक बार गो थ्रू कीजिए और थ्योरीज को सब्सटेंशियल वे में पढ़िए। मे बी उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपसे पूछी जा सकती है। जैसे मैंने बताया जस्टिस के बारे में मुझे पूछा, और फिर जस्टिस को उन्होंने ब्रॉडर वे में मेरे से पूछा, ठीक है। आपको कुछ कोट्स याद होनी चाहिए, आपको अपने थिंकर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अगर इसने पीएसआईआर पकड़ा है तो इसको इतना तो आना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद थॉट, थोड़ा सा मतलब थॉट वही हो गया, डब्ल्यूपीटी आईपीटी, थ्योरीज, और फिर आपको थोड़ा सा लक्ष्मीकांत रिवाइज करनी पड़ेगी। जल्दी से क्विक रेडी रिकॉर्नर आते हैं, विशाल सर को पता है इस बारे में,
तो ही कैन गाइड यू बेटर इन दिस। तो पॉलिटिकल जो भी हमारी ये जो इंडियन पॉलिटी है उसको प्लीज एक बार पढ़ के चले जाइएगा, बिकॉज फैक्चुअल क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, डायरेक्टली आर्टिकल्स पूछे जा सकते हैं। तो जो भी शॉर्ट वे में अगर आपने अभी तक नोट्स तैयार किए हुए हैं तो उनको क्विक रिवीजन कीजिए और उनको सप्लीमेंट करें विद रिस्पेक्ट टू द करंट न्यूज। अगर करंट में कोई न्यूज आ रही है, एंटी डिफेक्शन न्यूज में आ गया वापस से, तो कोई भी टॉपिक आ गया तो उसको प्रिपेयर रखें, क्योंकि ये पूछेंगे। पॉलिटिकल पार्टी न्यूज में आई तो क्राइटेरिया फॉर नेशनल पार्टी पूछ लेंगे, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के हैं तो दे एक्सपेक्ट कि आपको आता है, ठीक है। उसके बाद आईआर थ्योरीज के बारे में मैंने बोला, हाँ क्वेश्चन आते हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि आईआर से सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन आएंगे, नहीं, आईआर थ्योरीज से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्पेसिफिकली रियलिज्म और लिबरलिज्म की डिबेट, आई थिंक वो जो भी पीएसआईआर पढ़ रहे हैं उनको इस बारे में पता होगा, और कुछ इवेंट्स जो चल रहे हैं प्रेजेंटली, और आपको थोड़ा थोड़ा अपने नेबरहुड के बारे में पता होना चाहिए कि अभी आपकी चाइना के साथ क्या पॉलिसी है, हमें क्या करना चाहिए, हमारे कौन से बॉर्डर्स फ्रेजाइल हैं, हमने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, ठीक है, वेदर इट विल बी सोशल। हाँ, एक और सॉरी टू इंटरप्ट, मैं बोलना चाहता था कि अगर कोई भी क्वेश्चन आईआर के रिलेटेड आता है, फॉर एग्जांपल दे विल आस्क यू इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, तो आप उसको ना डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में कवर करना, और वो हम मेंस में भी वैसे ही करते हैं। जैसे उसका सोशल एंगल क्या है, उसका पॉलिटिकल एंगल क्या है, उसका इकोनॉमिकल एंगल क्या है, अगर आप जैसे आप इजराइल के साथ कर रहे हैं तो उसका टेक्नोलॉजिकल एंगल भी आ जाएगा, मिलिटरी पॉइंट ऑफ व्यू भी आएगा। तो अगर इस वे में आप उनको एक्सप्लेन करेंगे तो उनको लगेगा कि यस, इस मतलब बच्चे ने अच्छे से इस चीज को पढ़ा हुआ है और उसको सब्सटेंशियल नॉलेज। तो इंटरव्यू में एक ही चीज है, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर गलती से कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बशर्ते ये है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस ड्रॉप नहीं करना। यू शुड हैव अ स्माइल ऑन योर फेस एंड इट शुड नॉट लुक मोर फेक, ठीक है ना, और कूल रहना है। और वैसे भी जितना मुझे पता है कि इंटरव्यूज जो भी हैं वो आपको बहुत ही ज्यादा रिलैक्स करवाते हैं वहां पे। तो अगर आप अपने ऊपर आपका कॉन्फिडेंस है, अगर आपका डैफ आपका अच्छे से प्रिपेयर है, और आपका जो भी बैकग्राउंड है, ग्रेजुएशन है आपकी जिसमें स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो प्लीज तैयार हो जाना, क्योंकि सर खुद सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। तो इतने सारी चीजें थोड़ी सी ब्रीफ में बता दी हैं, अगर कोई क्वेश्चन है स्पेसिफिकली तो यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिवेक सर। मैं तो शिवेक सर को काफ़ी टाइम से जानता हूँ। इनफैक्ट जब हमारा मेंस का रिजल्ट निकला था तो आई रिमेंबर कि शिवेक, मैं और हमारे इरफान सर, तो कई बार हमारा डिस्कशन इसी बात पे होता था। मतलब हमें भी काफ़ी बार एंजाइटी हो जाती थी कि इंटरव्यू में हुआ क्या, इफ़ यू रिमेंबर शिवेक सर। तो यस सर, आई रिमेंबर दैट। हाँ, तो ये हर बच्चे के साथ होता है। तो मुझे आज भी मतलब वो मोमेंट्स रिकॉल हो जाते हैं कि हम तीनों खड़े होते थे और यहाँ से शिवेक सर बोलते यार ये भी पूछ सकते हैं, तो इरफान यूज्ड टू काउंटर, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, तो अगर ऐसे पूछा तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो ग्रुप डिस्कशंस बहुत अच्छे होते हैं। आई स्टिल रिमेंबर शिवेक सर एंड इरफान, मैं भी बीच में कभी इन्वॉल्व होता तो दे यूज्ड टू डू वेरी प्रोडक्टिव ग्रुप डिस्कशंस। तो ग्रुप डिस्कशंस में ये लोग डिस्कस करते थे, तो मैं बड़ी बार देखता था, क्योंकि मजा आता था देखने में कि बच्चे डिस्कस कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए। मतलब थोड़ा सा वो जो है डिबेट्स में, डिबेट मोड में एक चीजें आ जाती हैं। तो आप लोग जो इस बार दे रहे हैं, आप लोग भी वो मोड, क्योंकि मुझे अभी रिकॉल हुआ, क्योंकि शिवेक सर को मैंने देखा है कि इन्होंने कैसे प्रिपेयर किया, तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे जैसे 2-3 बच्चे हो तो आप आपस में ग्रुप स्टडीज थोड़ा टाइम रख के, मतलब पूरा दिन तो नहीं, जैसे 2-3 घंटे आप लोग ग्रुप में भी एक क्वेश्चनेयर जैसा थोड़ा सा कर सकते हो कि एक दूसरे का इंटरव्यू ले सकते हो। तो सर विशाल सर, सॉरी टू इंटरप्ट, एक्चुअली इसी ग्रुप डिस्कशन के बारे में कुछ बताना चाहूंगा मैं इनको। जी। लिटरली ये जो ग्रुप डिस्कशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्टली बताऊंगा, हम क्या करते थे, हम डिवाइड कर देते थे टास्क अपना। जैसे हम बोलते थे कि डेली एक्सपोजर ए बंदा पढ़ेगा, ठीक है, द हिंदू दूसरा पढ़ेगा, और जो तीसरा है वो आईआर के रेस्पेक्ट में या जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुए हैं या डैफ के रेस्पेक्ट में, अगर ये वाला टॉपिक हमारा कॉमन है तो इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेके आएगा। एंड फिर अगले दिन 1-1.5 घंटे का टाइम होता था, हम बैठते थे और फिर तीनों पहले बारी बारी डिस्कस करते थे एक दूसरे के साथ। तो इससे क्या होता था कि जो नॉलेज है ना आपका वो शेयर होता था और एक बैलेंस्ड व्यू होता था। क्योंकि हम कभी कभी ऐसा क्या करते हैं कि हमारा अपना ही व्यू ऐसा होता है कि हमें लगता है नहीं हम तो ठीक है, बट जब हम 2-3 लोग साथ में बैठते हैं और डिस्कशन करते हैं ना, तो वो डायलेक्टिक्स होती है और आप फिर एक अच्छा आंसर बना पाते हैं। तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और जैसे किसी की स्पेशलिटी, अगर किसी को जेएंडके के बारे में अच्छे से पता है, उसने पहले से प्रिपेयर किया है, तो आप उसको साथ में रखिए। अगर आपका आईआर में थोड़ा अच्छा स्टांस है तो आपका खुद का भी तैयार हो रहा है, साथ में आपको जेएंडके पढ़ा देगा। तो ऐसे ही हमने भी किया और लिटरली इट वाज रियली फ्रूटफुल, इवन फॉर द इरफान, इवन फॉर मेरे लिए भी। और जो भी उस मतलब ग्रुप डिस्कशन में थे, उनके काफी अच्छे मार्क्स थे इंटरव्यू में, जस्ट बिकॉज कि हमने नॉलेज शेयर किया था।
तो आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट वे। यहाँ से आप अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप कर सकते हैं और एक बेटर आंसर भी डेवलप कर सकते हैं जो डिमांड है इंटरव्यू की। एक बैलेंस अप्रोच में काफी सारे पॉइंट्स आप बता सकते हैं। एग्जैक्टली ये मुझे लग रहा है मॉक्स जितना महत्व हमें इसको भी देना चाहिए, इस चीज को जितना हम मॉक्स को इंपॉर्टेंस देते हैं इतनी इंपॉर्टेंस हमें इस चीज को भी देनी चाहिए, क्योंकि मॉक्स में कई बार क्या होता है कि हमारा हर एक एंगल टच नहीं हो पाता है, इसमें टच हो जाता है, प्रोवाइडेड कि तीनों 2-3 या जितना भी जो आपका ग्रुप है वो सब जा रहे हो और सबका अपना अपना एक डोमेन। शिवेक सर एक चीज आप और एनलाइटन कर दीजिए इनको कि जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक अगर जो चीजें आती हैं तो इनको इतना बता दीजिए कि जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक इनको अगर पढ़ना है तो कितना इन डेप्थ जाना है, किस लेवल के किस हिसाब किताब से उसको ये लोग कवर करें। सर एक्चुअली यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी देख रहा हूँ कि एक शान जी ने पूछा कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में रिसेंट प्रिपेयर करने के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे। देखो पहले डिस्ट्रिक्ट के स्पेसिफिक में बात करूंगा। जब आप किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत कम वे में आप अच्छा तैयार कर सकते हैं। अब आप डिस्ट्रिक्ट में रहे हैं, आपको वहाँ का लिटरेसी रेट पता होना चाहिए, वहाँ का चाइल्ड सेक्स रेशियो पता होना चाहिए, सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी उसके साथ बॉर्डर करती हैं वो आपको पता होना चाहिए, और आपको ये भी पता है कि किश्तवाड़ इज अ हब फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कितने सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे हैं, आपको उनका पूरा डिटेल पता होना चाहिए। और डिस्प्यूटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे राटले हो गया, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में फिर इंडस वाटर ट्रीटी भी आ जाएगी, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू आस्क, एंड फिर उसके कुछ पॉजिटिव्स नेगेटिव्स भी पूछ लेंगे कि भाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो भी आपने बनाए हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी डैम, अगर आपका सिविल है तो फिर पूछ लेंगे, या पूछेंगे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स कैसे डिफरेंट करते हैं, जो डिफर करते हैं फ्रॉम द नॉर्मल जो भी हम ग्रेविटी डैम्स वगैरह बनाते हैं, ये क्वेश्चन भी आएगा। किस ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब की किस ट्रिब्यूटरी पे कौन सा प्रोजेक्ट है, कितने मेगावाट का है, ठीक है। मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किश्तवाड़ में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के मतलब फादर किसको कहा जाता है जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो ओम मेहता जी थे। तो आपको वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में भी पता होना चाहिए, जैसे ओम मेहता जी हैं, उषा मेहता हैं, सुनील शर्मा हैं, फिर आपको पूरे उस एरिया में किस तरीके की डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा सैफरॉन के बारे में लिटरली तैयार करके जाना, टाइप्स गुच्छी लच्छा मोंगरा डिफरेंट पूछेंगे, एंड बिलीव मी उनको आपकी जगहें भी पता है। मुझे एक्चुअली मैं विलेज पुछाल से बिलोंग करता हूँ, तो उन्होंने मुझे पुछाल विलेज के अंदर इन डेप्थ पूछा था मुझसे सर ने, ऐसी बात नहीं थी कि उन्होंने खुद बोला कि अपर पुछाल है लोअर पुछाल है, बताइए वहां पे कहाँ कहाँ होता है, आपकी जो सैफरॉन वैली है इसमें किस टाइप का सैफरॉन आप कल्टीवेट करते हैं, क्या कश्मीर वाले सैफरॉन से बेटर है कि नहीं है, प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, सैफरॉन प्रोडक्शन की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्यों कम हो रही है, ठीक है। उसके अलावा जैसे आप किसी भी विलेज में रहते हैं किश्तवाड़ में, तो वहाँ की अगर प्रॉब्लम्स पूछेंगे तो आपको आपकी प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए। पहली बात वहाँ का अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट पोटेंशियल, ठीक है, जैसे दक्षिण मड़वा कालम 70 आप बता सकते हैं। दूसरा जो ड्रग का इशू है, जो ड्रग मेनेंस है, उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, आप पहले ही प्रिपेयर है ना कि ये सब इश्यूज हैं। तीसरा वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है रेनफेड है, प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम नहीं है, वाटर की स्कैरसिटी रहती है, आपको ये भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके अलावा किश्तवाड़ में और क्या इश्यूज हैं ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको उनका सोल्यूशन भी पता होना चाहिए। तो पॉलिटिकल लीडर्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, जो डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स पे, चाहे वो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, एरिया कितना है, मीन सी लेवल से कितना ऊपर है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स उसको कवर करते हैं। ऐसा ये भी पूछा था कि चंबा करता है उससे, मैंने बोला यस सर करता है, कहाँ पे करता है, साउथ वेस्ट में करता है, नॉर्थ में करता है, इस डेप्थ में भी पूछ लेते हैं। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट पे श्योर रहें, स्पेसिफिकली क्वेश्चन सोशल इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल डायमेंशन से आएंगे, यही क्वेश्चंस हैं। और अगर आपको किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता करना है तो कुछ वीडियोस भी हैं यूट्यूब में, आप वहां से देख सकते हैं, और आई थिंक इंटरनेट पे भी इंफॉर्मेशन है, मतलब हिस्ट्री ऑफ किश्तवाड़, किश्तवाड़ का नाम किश्तवाड़ क्यों पड़ा, कष्ट निवारक क्यों बोलते हैं, कश्यप ऋषि आए भी थे, गोवर्धन सार क्या है, ठीक है। श्राइन जैसे आपको आप बोलोगे, जब इंट्रोड्यूस करोगे किश्तवाड़ को तो आप पूछेंगे बताओ जी किश्तवाड़ के बारे में, बोलोगे इट इज द लैंड ऑफ सैफायर, सैफरॉन एंड श्राइन्स। अगर आपने ये 3 चीजें बोल दी तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू आस्क यू अबाउट कि कौन कौन से श्राइन्स हैं वहां पे, ठीक है, कौन कौन सी यात्रा है वहां पे, कौन कौन से नाग हैं, पूतनाग वगैरह, जो भी शान साहब ने क्वेश्चन पूछा है इनको पता ही होगा। तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपके डिस्ट्रिक्ट में ये भी पूछेंगे कितनी तहसील हैं, कितने ब्लॉक्स हैं, तो ये सारा आपको पता होना चाहिए, मतलब एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको रहनी चाहिए। और जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो लेट मी टेल यू, थोड़ा सा आपको डोगरा रूल के बारे में पता चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। उस टाइम जब हम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे तो डोगरा रूल से बड़े सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी आपको तैयारी कर लेनी है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था, आर्टिकल 370 35 है, ये तो पढ़ के ही जाना है। डोमिसाइल के रूल्स क्या हैं, रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स कैसे है, क्या इश्यूज हैं, टेररिज्म के बारे में आपको पता चाहिए कि कितना इन्फिल्ट्रेशन रेट कम हुआ है,
ठीक है, इकोनॉमिक फ्रंट पे अभी तक हमारे जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, एक बार ब्रीफली थोड़ा सा बजट भी पढ़ लीजिएगा जम्मू कश्मीर का जो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, कौन कौन सी स्कीम्स हैं। जैसे आपको पता है 85 प्लस पीपल ओरिएंटेड स्कीम्स हैं, तो उसमें मेन स्कीम जिनमें हमने अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। G20 समिट इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसमें तो आपको पूरा पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म के बारे में बात हुई है, फिल्म पॉलिसी के बारे में बात हुई है, फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में बात हुई है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब इन चीजों को देखेंगे तो आपको लिटरली जो सुपरफिशियल चीजें वहीं से क्वेश्चन आएंगे, इतना डेप्थ में डरने की जरूरत नहीं है, बट बेसिक सोशो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल एंगल आपको जम्मू कश्मीर का पता होना चाहिए और अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में एटलीस्ट सारा पता होना चाहिए। थैंक यू शिवेक सर। डिस्ट्रिक्ट के बारे में जैसे कि पहले भी लास्ट टाइम भी हमने जो मीट की थी उसमें बताया था कि आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे जा सकते हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट पे, वहाँ पे लिंक्स आते हैं, उसमें आप डेमोग्राफी में चले जाइए, डेमोग्राफी में आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट का दिखेगा। तो अगर जैसे कुछ बच्चों ने अपने डायरेक्ट में मोर देन 1 प्लेसेस लिखे होते हैं, जैसे उनकी स्टडीज एक जगह से हुई है, ठीक है, तो आप कंपैरिजन चार्ट भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे आप जम्मू में रह रहे हो, किश्तवाड़ से भी हो, तो आपका मतलब लेट्स से कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस इज जम्मू एंड योर परमानेंट एड्रेस इज किश्तवाड़, तो दोनों में से थोड़ा सा कंपैरिजन करवा लो, यहाँ की वेबसाइट वहाँ की वेबसाइट, और भी आगे पीछे उसमें कितनी तहसील से कितने ब्लॉक्स हैं, तो थोड़ा सा वेबसाइट से जितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी उसके नोट्स आप बना सकते हो। थैंक्स अगेन शिवेक सर। नाउ आई थैंक यू सो मच रिक्वेस्ट विशाल सर। now I request our next batchmate तेजिंदर शर्मा जी, इनका सर का जो PSI और ऑप्शनल है, तो सर आप प्लीज थोड़ा सा इंसाइट डालिए। वेलकम तेजिंदर सर। Thank you, sir. Good evening to everyone. Myself, Tejinder Sharma, CPA Rank 21. Most of the things has been covered by Shivek sir. मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूँगा जो मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू। सर आपकी वॉइस थोड़ी कम आ रही है। सर अब ठीक है? जी जी अब ठीक है, नाउ इट्स फाइन। तो ओके सर ओके। तो मेजर थिंग्स तो PSI और ऑप्शनल की शिवेक सर ने कवर कर ही दी है, बट मैं अपने पर्सपेक्टिव से जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया था PSC भवन में, तो मैं उस चीज के बारे में बात करूंगा। तो बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड था वो BSc है, अपना केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी में। तो और मेरी जो हॉबी थी वो बर्ड वॉचिंग थी। सो जूलॉजी की एक बैकग्राउंड, बर्ड वॉचिंग हॉबी। तो सबसे पहले अटैक जो था उनका इसी चीज पे रहा, जो हमारे चेयरमैन सर थे कि आप मुझे ये बताइए, वो दे वांटेड टू टेस्ट माय नॉलेज ऑफ जूलॉजी। तो पहले उन्होंने इसी चीज के ऊपर बात की। तो जो अभी बात चल रही थी, अगर आप डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं तो वो आपको जो आपका बेसिक सब्जेक्ट्स है उनसे क्वेश्चंस जरूर पूछ सकते हैं। तो उन्होंने मुझे पूछा कि बर्ड वॉचिंग क्या होती है और आप बर्ड वॉचिंग कैसे करते हैं। तो एक्चुअली उनका जो बेसिक फंडा था पूछने का वो ये था कि एक्चुअली मैं बर्ड वॉचिंग करता हूँ या फिर जस्ट मैंने ये चीज लिख दी है। तो सर आई एक्सप्लेन देम कि मैं अपने जो घर है उसकी छत के ऊपर से बर्ड वॉचिंग करता हूँ। देयर इज अ नेस्ट, तो वहां पे रोज सुबह जो है बर्ड आके अपने जो यंग वंस उनको फीड करती है। तो इस तरीके के जब आप ऑनेस्ट आंसर्स देते हैं तो कहीं ना कहीं जो बोर्ड मेंबर्स है उनको ये चीज लगती है कि हाँ रियलिटी में इसने ये चीज एक्सपीरियंस की हुई है। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है, जो भी आने वाले हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो जिनका इंटरव्यू अभी होने वाला है, तो आप जो भी चीज लिखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं एक ऑनेस्टी जरूर होनी चाहिए। अगर आप उस चीज को रिलेट नहीं करते हैं तो वो आपको पकड़ लेंगे। जैसे कि अर्लियर मैम ने भी कहा था कि वो लोग जो है काफी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, तो वो ये चीज समझ जाएंगे कि आपने जस्ट लिखने के लिए लिखा हुआ है। तो एक तो ये चीज थी। एंड देन दे आस्क्ड मी अबाउट माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स, और उन्होंने मुझे ये पूछा कि उस चीज को उन्होंने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट करके पूछा कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं, क्या आप उनके नाम बता सकते हैं। आई वाज नॉट नोइंग द नेम ऑफ द प्रोटीन्स, तो मैंने उस चीज को कहा कि सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, बट हाँ उसको मैंने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिलेट करके उनको रिस्पॉन्ड किया और उसके बाद वो आगे बढ़ गए। उसके बाद जो सेकंड चीज जो अभी तक डिस्कस भी हो रही थी वाज रिगार्डिंग द डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि मेरा 30% ऑफ द इंटरव्यू वाज बेस्ड ऑन माय डिस्ट्रिक्ट डोडा। और मैंने जो अपनी लोकल, जो मेरी मदर टंग थी, वो मैंने अपनी जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ की पहाड़ी सराजी, उसको लिखा हुआ था। तो दे वर वेरी वेरी मच क्यूरियस अबाउट इट कि आपने ये लिखा हुआ है तो आप और कौन सी लोकल लैंग्वेजेस जानते हैं, डोडा में कितनी डायलेक्ट्स जो है वो बोले जाते हैं। तो इस तरीके की चीजें जब आप लिखें तो ये इंश्योर करें कि आप उस चीज को इन डेप्थ जानते हैं कि अगर आपने सराजी लिखी है तो सराजी वर्ड का ओरिजिन कहाँ से आया,
ठीक है, उसके ऊपर कोई रिसर्च तो नहीं हो रही, कोई स्कॉलर्स उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि नहीं। जैसे एक लंदन बेस्ड स्कॉलर हैं आशिक पीरजादा हिंद, वो हमारी लैंग्वेज पे रिसर्च कर रहे थे, तो मैं जस्ट गूगल पे स्क्रॉल डाउन कर रहा था तो मुझे उनका नाम पता चला, तो आई वाज नोइंग इट, तो मैंने बता पाया। वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, करेक्ट। जो पैनलिस्ट है उन पे एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि यार ये इस चीज से मतलब लिटरली जुड़ा हुआ है। तो एक तो चीज मैंने ये आपको कहनी थी, और दूसरी बात ये थी कि कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो इस तरीके से आएंगे, जैसे कुछ जॉली क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स की बात चल रही थी तो सर ने मुझसे ये कहा कि अगर कोई बर्ड माइग्रेट करते करते बीमार हो जाए तो उस वक्त ये मैटर नहीं करता कि आप क्या बोल रहे हैं, बट आप कैसे बोल रहे हैं। मतलब आप पजल तो नहीं हो रहे, आप उस चीज को लेके थोड़ा सा मतलब परप्लेक्स तो नहीं हो गए कि यार ये किस टाइप का क्वेश्चन है। तो मैंने नॉर्मली आंसर किया कि सर बीमार भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है, इट्स पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो सर को वो चीज स्ट्राइक की कि यस आप प्रैक्टिकल वे में चीजों को अप्रोच कर रहे हैं। तो दैट वाज इट। और रिगार्डिंग पॉलिटिकल साइंस जो कि मेरा ऑप्शनल था, उसके रिगार्डिंग भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए, बट वो एनालिसिस पे बेस्ड थे। जैसे कि जो मुज्तबा सर थे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि इज इंडियन स्टेट ए लेवियाथान, जो थॉमस हॉब्स का कॉन्सेप्ट है लेवियाथान का। तो वो एक तरीके से बाउंसर के टाइप मेरे आया कि इंडियन स्टेट क्या लेवियाथान है या नहीं है, आपको यस एंड नो में आंसर करना है। बट एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जो भी मेरे एस्पिरेंट्स इस चीज को सुन रहे हैं, कि आपको कोई भी चीज ब्लैक व्हाइट में आंसर करने की जरूरत नहीं है। हर चीज को एनालिसिस कीजिए, उसके पॉजिटिव्स और उसके नेगेटिव्स दोनों चीजें प्रो कॉन्स बता के, और फिर एक कंक्लूजन पे आइए। डायरेक्ट एक्सट्रीम आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर डायरेक्ट एक्सट्रीम आंसर देंगे वो एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है बोर्ड मेंबर्स पे। तो फिर मैंने जब उसको एनालिसिस करके लास्ट में सर को बोला नो सर इट इज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट ए लेवियाथान, इट इज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर सर ने कहा कि ठीक है, मतलब उसका एक एनालिसिस पार्ट सर को ठीक लगा। देन जैसे शिवेक सर भी बात कह रहे थे कि जब आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल होता है तो आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की जो असेंबलीज हैं कितनी हैं। जैसे इन माय केस डिस्ट्रिक्ट डोडा की पहले 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, अब 3 हो चुकी हैं आफ्टर द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। और आपकी मेन एरियाज, जैसे मेरे डिस्ट्रिक्ट है वहां पे मरमत, ठाठरी, डोडा, भद्रवा, गुंदना, देसा, इस टाइप की जो एरियाज हैं, हर एक एरिया के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वहाँ की इकोनॉमी किस चीज पे सर्वाइव है करती है, थ्राइव करती है। वहाँ पे सेक्स रेशो, जैसे कि सर बता रहे थे, सेक्स रेशो कितना है, और वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो कितनी इंप्लीमेंट हो पाई हैं, और उसमें आप क्या एडिशन कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको उन चीजों को इम्प्लीमेंट ही करना है। आपका यही काम है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट है, उसको कंडक्ट करना है। तो इस चीज को लेकर क्वेश्चंस पूछे गए थे। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि शायद आपको लगेगा कि मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि बाउंसर टाइप क्वेश्चंस जिनको मैं कहता हूँ, कि जैसे उन्होंने मुझे ये पूछा कि आपके एक डिस्ट्रिक्ट है और चिनाब के एक साइड एक लैंग्वेज बोली जाती है और चिनाब के दूसरी साइड दूसरी लैंग्वेज बोली जाती है, सिराजिन भद्रवाही, तो ऐसा क्यों है, कैन यू एक्सप्लेन। तो मैंने फिर ज्योग्राफिकल बैरियर्स और पहले जो कम्युनिकेशन ऑफ मोड्स नहीं होते थे, कम्युनिकेशन के मोड्स, तो उन चीजों को लेके उसको थोड़ा एनालिसिस करके बताया। देन दे आस्क्ड मी अबाउट जोधामल फॉर्म्स, जो कि टिम्बर प्रोड्यूसिंग, जो भी चिनाब बेल्ट के लोग हैं तो वो जानते होंगे कि जोधामल फॉर्म्स जो थी वो टिम्बर। और ये क्वेश्चन जो है ये मैंने कभी प्रिपेयर नहीं किया था, ये बचपन में मेरे दादू मुझे कहा करते थे। तो जो मैम अर्लियर कह रहे थे ना कि बचपन से लेके अभी तक जितना भी नॉलेज आपने एक्यूमुलेट किया है, कुछ भी नॉलेज आपने कहीं से गैदर किया, वो आपके काम आने वाला है। और जोधामल फॉर्म्स वो क्वेश्चन था जिससे मुझे ये चीज पता लगी। और फिर जैसे आपका हमारा चिनाब वेल में हॉर्टिकल्चर का बहुत स्कोप है, गुच्छी हो गया, वॉलनट हो गया, एप्पल, सैफरन, जैसे सर बता रहे थे, तो उन चीजों के बारे में थोड़ा सा, जैसे जीआई टैग का भी इशू चल रहा था गुच्छी को लेकर, तो इन चीजों के बारे में आपको प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी। राजमा विलेज, उसके बाद लेवेंडर कल्टीवेशन, पर्पल रेवोल्यूशन जो इस वक्त हमारे पास भद्रवा में चल रहा है, इन चीजों को लेके क्वेश्चन आएंगे, जरूर आएंगे। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि फॉर योर डिस्ट्रिक्ट एंड जेएंड के डेली एक्सेलचर को गो थ्रू करना है। आपने डेली एक्सेलचर को एक बार गो थ्रू जरूर करिए कि किस डिस्ट्रिक्ट में क्या न्यूज है, क्या न्यू डेवलपमेंट्स है, वो जरूर देखना चाहिए आपको। देन उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस से एज ए होल मुझे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे। मेरे जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन थे वो मेरे डिस्ट्रिक्ट, मेरे जो जूलॉजी सब्जेक्ट एंड
और जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं ऑफ सिविल सर्वेंट, उस पे ज्यादा क्वेश्चन थे। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन वहां पे आया था कि आप सिविल सर्वेंट की 5 क्वालिटीज बताइए और दो एग्जांपल बताइए कि जब आपने वो क्वालिटी शो की है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि आई एम एन एक्टिव लर्नर, तो ये चीज आप एग्जांपल से बताइए। और ये एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जिनके आंसर्स आपको उसी वक्त अपने जो ब्रेन से फ्रेम करके बताने पड़ते हैं। तो आप ये बताइए कि कहीं आपने एक्टिव लर्निंग की प्रोसेस देखा है, तो किस हिसाब से आप कहेंगे कि वो एक एक्टिव लर्निंग प्रोसेस थी। तो मुझे एक बच्चे की एग्जांपल याद आई थी कि एक बच्चा होता है, अगर उसको कोई खिलौना दिया जाए तो वो तब तक उस खिलौने से पटकता रहता है, यहाँ वहां फेंकता रहता है, जब तक वो उसको ऑपरेट करना ना सीख जाए। तो वो एक परसिवरेंस है उस बच्चे की। जब तक वो उस चीज को सीख ना ले, जब तक वो उस चीज को मतलब अच्छे से एनालिसिस ना कर ले, तब तक वो छोड़ता नहीं है। तो ये एक क्वालिटी है जो कि हमारे अंदर होनी चाहिए कि जब तक आप किसी चीज को सीख ना लो, उसके प्रति अपनी परसिवरेंस, डेडिकेशन लगा के रखो। और मुझे क्वेश्चन पूछे गए थे रिगार्डिंग माई यूनिवर्सिटी, जो कि मेरी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नो यूनिवर्सिटी थी, जिससे मैंने पीजी पॉलिटिकल साइंस किया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये था, सर ने ये किया, मुझे चेयरमैन सर ने, कि आपने इग्नो से क्यों किया, व्हाई नॉट फ्रॉम जेयू और व्हाई नॉट फ्रॉम एनी अदर यूनिवर्सिटी। तो मेरा जो आंसर था वो बिल्कुल ऑनेस्ट था कि इट वाज जस्ट टू सब्सटेंशिएट माय ऑप्शनल प्रिपरेशन। मेरा कोई रिसर्च में जाने का ऐसा कोई भी एम नहीं है, तो मैं सिर्फ अपने ऑप्शनल को सब्सटेंशिएट करने के लिए इस चीज को कर रहा हूँ। एंड आई वांट टू बिकम ए सिविल सर्वेंट ओनली। तो सर ने उस चीज को भी मान लिया। देन दे आस्क्ड मी अबाउट कि आपने नेट भी किया हुआ है, तो अगर आपको रिसर्च में नहीं जाना था तो फिर नेट क्यों किया आपने। मैंने कहा सर इट वाज माय प्लान बी, अगर मैं यहाँ पे नहीं सक्सेस तो मैं शायद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सोच सकता था। तो इस तरीके के ऑनेस्ट रिप्लाई जब आप देंगे तो फिर शायद आप काउंटर क्वेश्चंस कम आते हैं। ये मेरा रहा है इसकी एक लर्निंग कि आप जो भी चीज कहें वो ऑनेस्टली कहें, ताकि जो काउंटर क्वेश्चंस हैं वो उस तरीके का ना आए जहां पे आप फंस जाओ। और फिर रिगार्डिंग ये भी था कि आपके जो डोडा डिस्ट्रिक्ट था, पहले चिनाब रीजन में वो एक ही डिस्ट्रिक्ट था, कौन सी ईयर में आपके जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी ट्राइफर्केशन हुई थी। तो ये मैं प्रिपेयर करके गया था, क्योंकि बिकॉज डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको करके जानी थी। तो 2007 के बारे में मैंने बताया। फिर सर उसके पीछे चले गए कि डोडा डिस्ट्रिक्ट वाज पार्ट ऑफ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, तो वो कब उधमपुर से बाइफरकेट हुआ था। तो वो भी मुझे फॉर्चुनेटली पता था, 1948। तो इस तरीके से आपको एक क्रोनोलॉजिकल वे में अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि ये पहले किसका पार्ट था और इसमें पहले क्या डेवलपमेंट थी, अब क्या डेवलपमेंट्स हैं। देन क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग रोड एक्सीडेंट्स इन द एरिया, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज या फिर कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए कि जो इनको मिनिमाइज कर सकें। सो इट वाज लर्निंग एक्सपीरियंस। तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता था रिगार्डिंग पॉलिटिकल साइंस। एक और क्वेश्चन मेरे को पूछा गया था कि द प्रॉब्लम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज ए पोस्ट मॉडर्निस्ट प्रॉब्लम। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था कि जो पूरा एनालिसिस बेस्ड था, और 2 से 3 मिनट जो है डिबेट इनिशिएट हुई मेरे और जो सर पूछ रहे थे मुझे मेंबर 3, तो उनके साथ जब मैंने ये बात की, तो एट द एंड वो एक्चुअल में आपकी थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज और साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को भी चेक कर रहे थे। तो एट द एंड उन्होंने मुझे कहा नहीं, आप इस कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़िए, आपको इसके बारे में पूरा पता नहीं है। तो जब वो 2 बार उन्होंने रिपीट किया तो मैंने कहा ठीक है सर, आई विल डू। तो आप ऐसा नहीं कीजिए कि जब आप बोर्ड मेंबर ये कह रहा है कि आपको इस चीज को दोबारा विजिट करने की जरूरत है या इस चीज को दोबारा से, तो आप ये नहीं कहिए कि नहीं सर मेरे को पता है यही ठीक है। अगर वो ठीक भी है तो भी आप उसको बड़े ही पोलाइट वे में एक्सेप्ट कीजिए कि ठीक है मुझे नहीं आता, आप सही कह रहे हैं, मैं गलत हूँ, और अगले क्वेश्चन पे जाइए। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपका सही होना वहां जरूरी है, ये जरूरी है कि वो बोर्ड मेंबर आपको वहां पे नंबर दे जिससे आपका सिलेक्शन हो। सही हो के तो कोई फायदा नहीं है अगर वो नंबर नहीं देगा तो ये चीज थी। एंड बस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू तेजिंदर सर। तो मुझे जो आपसे एक क्रक्स निकाल के जो मैं बताऊं बच्चों को, जो अभी तक इनको नहीं मिला है, 2-3 चीज़ें। पहला जो सर ने बोला कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे सर से पूछा गया कि माइग्रेट करते टाइम जो बर्ड्स हैं अगर वो बीमार हो जाते हैं तो आप क्या करो, तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर रहेगा तभी आप उसको क्या कर सकते हो। आंसर उसका बहुत सिंपल होता है, ठीक है, आंसर उसका बहुत सिंपल है। और दूसरा जो सर ने बोला कि बी ऑनेस्ट, ठीक है। जैसे सर ने अगर बर्ड वॉचिंग हॉबी रखी हुई थी वहाँ पे, तो बर्ड वॉचिंग का मतलब ऐसा नहीं कि हमारे माइंड में होना चाहिए कि हमें बड़े बड़े कैमरास उठा के कहीं सेंचुरी में जाके वहीं पे उसकी पिक्चर्स क्लिक करनी है, या ऑनलाइन उनके पिक्चर्स अपलोड करने हैं, या किसी एनजीओ या किसी बर्ड वाले से
एफिलिएटेड होना चाहिए, सिंपल चीजें बोल सकती हैं। आपके घर में कोई अगर नेस्ट है, वहां पे चिड़िया आती है, कोई पंछी आता है, तो आप इतना सा भी बोलिए, तो देखा क्या जाएगा, बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी एक्सप्लोर की जाएगी कि आप कितने ट्रूथफुली जो चीजें आपने अपने डैफ में मेंशन की गई हैं, क्या आप उनको जस्टिस दे पा रहे हैं कि नहीं। तो विच आई थिंक कि यहीं से डिसाइड हो जाता है कि आपको इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिल रहे हैं। So thanks, Tejinder sir. Now I request our next member, I think Goldie ma'am. So Goldie Sharma ma'am is here with us. Her optional is history. तो मैम आप प्लीज थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताइए। और हिस्ट्री में मुझे नहीं लगता लास्ट में भी जो हमारा इससे पहले एक सेशन हो चुका है उसमें भी कोई अभी तक हिस्ट्री के बारे में हमें बिल्कुल भी इंसाइट्स नहीं मिली हुई हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली एनलाइटन अस। Thank you, sir. Good evening, everyone. So my name is Goldie Sharma and my optional is the history. So regarding the history is that कि history कम होता है काफ़ी ज़्यादा, मतलब इतने ज़्यादा लोग नहीं प्रेफर करते हैं हिस्ट्री। इसके भी कई सारे रीजंस है, बट ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में पॉसिबल नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है। ऑलरेडी हमारे बहुत सारे बैचमेट्स आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, तो मैं भी उनसे अग्री करती हूँ कि हमें अपने इंटरव्यू के लिए सबसे पहले तो डैफ हमें अपना अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, अच्छे से फिल करना चाहिए, जिसके बारे में सर ने ऑलरेडी आपको बहुत कुछ बताया है। एंड एज पर माई ओपिनियन कि हमें हमारे इंटरव्यू को 5 और 6 कंपोनेंट में डिवाइड कर देना चाहिए। सबसे पहले तो अगर मैं अपनी बात करूं तो इंट्रोडक्शन जो है हमारा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सपोज जैसे मेरा ये था कि मेरा जो बैकग्राउंड था इट इज़ कम्प्लीटली इन हार्डकोर साइंस बैकग्राउंड था मेरा। आई हैव डन माई मास्टर्स इन केमिस्ट्री फ्रॉम जम्मू यूनिवर्सिटी, देन आई टुक हिस्ट्री ऑप्शनल। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन में सब उनको बताया एंड आई यूज्ड टू गिव ट्यूशंस टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, 7, 8। उनको मैं बेसिक साइंस पढ़ाती थी। तो आफ्टर दैट उन्होंने जब मेरा ऑप्शनल्स उन्होंने सुना, जब उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन सुना देन एंड मैंने उनको अपना ऑप्शनल भी मैंने बोल दिया कि मेरा ये ऑप्शनल था। फिर देन दे स्टार्टेड विद हॉबी भी उनको पूछा। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि हॉबी पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सपोज अगर आप कोई भी एक हॉबी ले रहे हो, जैसे मेरी हॉबी थी प्रैक्टिसिंग योगा, तो मैं काफ़ी ज़्यादा योगा मतलब करती भी थी। तो उस पे मैं तो यही बोलती हूँ कि अगर आप कोई भी हॉबी चूज कर रहे हो, जो भी आप लिख रहे हो, तो आप उस पे एटलीस्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करो। जैसे मेरा था, दो मैं योगा करती थी बट उस पे स्टिल मैंने 50 to 60 क्वेश्चन उस पे प्रिपेयर किए हुए थे, ताकि योगा में से मुझे जो भी क्वेश्चन पूछे मैं उनको आंसर कर सकूं। तो लकीली ये चीज हिट करी। मुझे योगा में से 3-4-5 सवाल पूछे गए ना, मतलब मैंने उन सबको अच्छे से आंसर किया। देन मेरा जो आगे वाला जो इंटरव्यू था, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन जो करंट पे गया। पूरा का पूरा ही मेरा जो इंटरव्यू था इट वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन माय ऑप्शनल। कोई भी मतलब हिस्ट्री से ही पूछते 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 इतना टाइम हो गया, अराउंड 23-24 मिनट्स जो था वो सारा हिस्ट्री पे ही चला गया। तो मुझे ये मैंने जो भी करंट का प्रिपेयर किया था वो कुछ भी नहीं उन्होंने पूछा। मतलब उन्होंने बिगिनिंग से ही स्टार्ट कर दिया। दे स्टार्ट आस्किंग मी अबाउट द फादर ऑफ रेनेसेंस इन इंडिया। देन जब मैंने उनको बताया राजा राम मोहन रॉय, तो राजा राम मोहन रॉय पे ही पूरा इंटरव्यू चला गया। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जो भी ऑप्शनल लेते हैं, अगर तो वो ऑप्शनल आपके बैकग्राउंड से मैच करता है तो बहुत अच्छा है। अगर वो बैकग्राउंड से नहीं मैच करता है, जैसे मेरा केमिस्ट्री और हिस्ट्री का कोई रिलेशन ही नहीं है दूर दूर तक, बट आप उनको इस पोजीशन में आप उनको एटलीस्ट जस्टिफाई करने के लायक होने चाहिए। जैसे मैंने उनको डायरेक्टली बोल दिया कि सर हिस्ट्री मैंने इसलिए लिया बिकॉज एक तो मुझे जेन्युइन इंटरेस्ट था, दूसरा हिस्ट्री ओवरलैप करती है पेपर 1 में, जीएस पेपर 1 में मुझे ये बेनिफिट करेगी। और मैंने उनको ऑनेस्ट रीजन बता दिए एंड दे सेटिस्फाइड। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ नहीं पूछा कि ऐसा क्यों था, ऐसा नहीं था। देन उसके बाद उन्होंने फिर राजा राममोहन रॉय पे सारा वर्क किया, उनका क्रिटिकल एनालिसिस। इवन उन्होंने मुझे ये भी पूछा कि वो ब्रिटिश एजेंट थे, दे रिगार्डेड एज अ ब्रिटिश एजेंट, व्हाई। देन उसके बाद हिस्ट्री एक बहुत ही ड्राई सब्जेक्ट है। इसके बाद इट वाज अ वेरी मिक्स्ड काइंड ऑफ क्वेश्चंस। दे आस्क्ड मी फैक्चुअल एज वेल एज द नैरेटिव बेस्ड क्वेश्चन। एक तो उन्होंने डायरेक्टली मुझे पूछ लिया कि व्हाई यू चूज अ नैरेटिव बेस्ड सब्जेक्ट
rather than having a background in a evidence based subject. तो मैंने उसको आंसर किया कि सर because we are going for the civil services where we have to serve the people, and in that scenario it is very important that we have the knowledge of people's background, the narrative of the people, what they used to think. तो उनमें भी उनका मिक्स्ड रिस्पॉन्स था। फिर उसके बाद काफी ज्यादा नैरेटिव बेस्ड क्वेश्चन चले, जैसे कैन हिस्ट्री बी री रिटन, या फिर मतलब सपोज अगर री रिटन की जा रही है तो वो किस तरीके से की जा रही है। तो उसमें तो मैंने यही बोला कि दो हिस्ट्री इज अ गुड सब्जेक्ट, but sir there is a need of addition of opinions with time, because every generation coming with the new opinions, so that opinions must be considered. Then उसके बाद they shift to the area, जैसे शिवेक सर ने सुनाया, जैसे तेजिंदर सर ने बोला है कि जो भी आपका एरिया है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, प्लस आपके एरिया की क्या जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस है, क्या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, वो भी पता कीजिए। जैसे आई एम फ्रॉम अखनूर साइड, सो मेरे एरिया में क्या था कि there is a famous ancient Buddhist site, so they asked question me related to that. There is a Tilak ceremony near the river Chenab. They asked me question from that side also. So उस तरीके से आप अपने एरिया को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, प्लस आपके एरिया में क्या प्रॉब्लम्स हैं आप वो भी प्रिपेयर कर लीजिए कि क्या क्या इस टाइम इश्यूज क्या हैं आपके एरियाज में। मतलब जैसा कि ऑलरेडी हमारे बैचमेट्स ने बताया है कि अच्छे से उनको आप प्रिपेयर कीजिए। फिर उसके बाद कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस थे जिसमें उन्होंने पूछा जैसे राइस सबसे पहले कहाँ है, देन अलीगढ़ मूवमेंट, ज्योतिबा फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन सब के बारे में पूछा गया। देन दे सडनली दे शिफ्टेड टू द J&K हिस्ट्री। In that they asked me about the प्रजा मंडल में कितने मेंबर्स है। देन उसमें भी फैक्चुअल क्वेश्चंस थे कि विलय दिवस जो है उसकी डेट क्या है। देन सडनली दे आस्क मी हु इज द पाकिस्तान प्रेसिडेंट। मतलब I don't know, but sometimes they used to ask this type of question to check your presence, कि आप यहाँ पे इस टाइम आपका मेंटल लेवल किस तरीके से चल रहा है। तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू आर एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, बट यू कैन ऑल्सो से सिंपली सॉरी सर कह के भी आप आगे शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आना जरूरी है। देन आफ्टर दैट मुजतबा सर केम। मुजतबा सर ऑप्शनल इज ऑल्सो हिस्ट्री, तो उन्होंने मुझे काफी उन्होंने भी नैरेटिव बेस्ड क्वेश्चन पूछे। उन्होंने पूछा जैसे पानीपत की बैटल है तो वो पानीपत में ही क्यों लड़ी गई है। देन ही आस्क्ड आल्सो मी अबाउट द सुलह कुल, देन अकबर्स फॉरेन पॉलिसी, देन कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। तो इस तरीके से क्वेश्चन हुए। फिर लास्ट में एट दैट टाइम देसराज सर भी थे, उन्होंने मुझे around 4 or 5 questions was from chemistry about the salt composition in drug, API क्या होता है, सीरम और हॉर्मोन्स में क्या डिफरेंस है। तो इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन पूछे। एंड और इससे मेरा ओवरऑल कंक्लूजन यही रहा कि हिस्ट्री में आपको आप इतने छोटे टाइम में आप हिस्ट्री नहीं कर सकते, आप मतलब हिस्ट्री प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो आपने माइक्रो नोट्स प्रिपेयर किए होंगे ड्यूरिंग द मीन्स, आप उन्हीं को ही अच्छे से रिवाइज कीजिए। मोर फोकस दीजिए मेडिवल पे, मॉडर्न पे और एंशिएंट पे। मेडिवल में स्पेशली दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल्स, जिसमें अकबर की पॉलिसीज, इन सब पे आप स्पेशल फोकस कीजिए। एंड इन मॉडर्न स्पेशल फोकस जैसे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हो गए, जैसे देन उसके बाद गांधीयन एरा जो आता है टिल 1947, उस पे आप अच्छे से फोकस कीजिए। देन एंशिएंट में भी आप हड़प्पा सिविलाइजेशन वगैरह जो है, गुप्ता पीरियड है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, उस पे भी आप ज्यादा फोकस कीजिए। और वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर रही बात तो आई जस्ट वांट टू से कि आपकी किस्मत बहुत ही खराब होगी अगर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में से क्वेश्चन आएंगे, बट समटाइम दे यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द वर्ल्ड हिस्ट्री ऑल्सो। सो और अगर आपका बैकग्राउंड है, जैसे आई वाज मास्टर्स इन केमिस्ट्री, सो सबसे पहले तो आपके केमिस्ट्री में बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए। आपको नॉर्मल जो भी नेचुरल फिनोमिना है उनमें अगर जो भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है आपको पता होना चाहिए। उसके लिए अगर आपके कॉन्सेप्ट काफी वीक पड़ चुके हैं, यू कैन स्टडी द 11th और 12th NCERT केमिस्ट्री बुक्स। मतलब उनका मैं ये नहीं कहती वो सारे पढ़िए, बस चैप्टर्स की समरी रीड कर लीजिए, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा केमिस्ट्री का। और
और क्योंकि इस टाइम में आई वोंट से कि आप अपने मास्टर्स के केमिस्ट्री के नोट्स वो थोड़ा टीडियस हो जाएगा, बिकॉज हिस्ट्री ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एलेबोरेटेड सब्जेक्ट है। सो उसी तरीके से वही 5-6 कंपोनेंट बनाइए, अपना इंट्रो अच्छे से स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपना हॉबी अच्छे से स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपना जो बैकग्राउंड है वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग कीजिए, ऑप्शनल अच्छे से स्ट्रॉन्ग कीजिए, जो आपके अचीवमेंट्स है उन पे अच्छे से वर्क कीजिए। रेस्ट थिंग्स विल बी वेरी इजी। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जैसे हमारे बैचमेट ने बताया, सारे के सारे क्वेश्चंस को हम नहीं आंसर कर सकते, बट एटलीस्ट जो भी आप आंसर कर रहे हैं उसको विद कंप्लीट कॉन्फिडेंस से कीजिए। और मैं अपना ट्रांसक्रिप्ट शेयर कर दूंगी इसी ग्रुप में, सो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू गोल्डी मैम। तो मैम कोई अगर आप स्पेसिफिक बुक, कोई JNK स्पेसिफिक अगर रेफर करना चाहें बच्चों को फॉर हिस्ट्री और जनरल बुक? सर हिस्ट्री के लिए तो मैं यही बोलूंगी कि कोई अगर शॉर्ट नोट्स इन लोगों ने, ऑब्वियसली वो मैंने भी बनाए थे, सबने बनाए होते हैं। अगर हिस्ट्री में ये डोगरा पीरियड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है, बिकॉज पर्टेनिंग टू हरि सिंह, प्रताप सिंह, व्हाट चेंजेस दे ब्रॉट, ये तो बहुत पूछे जाता है। 1947 का जो एरा है वो काफी ज्यादा डिस्कस किया जाता है। तो अगर अगर किसी ने फिर भी नोट्स नहीं तैयार किए हैं तो वो सिंपल बेसिक अरिहंत की वो जो बुक है जो JNK से पर्टेनिंग होती है वहां से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। आई बिलीव कि मैम ने बहुत मतलब लूसिड लैंग्वेज में आपको समझा दिया है, और इनका केमिस्ट्री एंड प्लस हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन था। तो थैंक्स मैम, थैंक्स अ लॉट। चेतन सर इज हियर विद अस, एंड बहुत से बच्चों का डे 1 से सोशियोलॉजी में बहुत सारे डाउट्स हैं। तो सोशियोलॉजी के काफ़ी सारे क्वेश्चन सर ने ऑलरेडी आंसर भी कर दिए, लेकिन नाउ आई रिक्वेस्ट हिम कि टू टेक ओवर दिस मीट एंड एक जनरल पर्सपेक्टिव बता दीजिए बच्चों को कि सोशियोलॉजी में क्या इनको अब करना है, इनका इंटरव्यू कितना सोशियोलॉजी की तरफ जा सकता है, और अगर जाएगा तो इन्हें क्या करना है। पहले अपना एक्सपीरियंस और साथ में गाइड कर दीजिए। जी Good evening, everyone. I hope I am audible to you. जी सर, आप ऑडिबल। तो मैंने यार 3 बार KS का इंटरव्यू दिया है, 1 बार AR का दिया है, तो 4 बार मैंने इंटरव्यू दिया है, द सेम ऑप्शनल। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सोशो पे आपका 10 से 15 मिनट इंटरव्यू चलना ही चलना है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आपको अगर पहले 2 क्वेश्चन ही आप बता दो हमें सर आता ही कुछ नहीं है, ऐसा अगर आप कुछ बोलने का सोच रहे हो सर को, तो वो एक तो बहुत ख़राब जाएगा, और दूसरा क्या है कि आप का ऑप्शनल है तो आपने इसे प्रिपेयर किया ही होगा, ये हम नहीं मान के चल सकते कि आपने पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, तो अभी लास्ट मोमेंट्स पे एक तो किसी का एक क्वेश्चन था कि सर एंजाइटी को कैसे कंट्रोल करें। तो पहले मैं ये बता दूं कि अगर आज भी अगर किसी को मुझे फिर से इंटरव्यू देने जाना हो तो इंटरव्यू देने से पहले हर किसी को एंजाइटी होती है। इवन रैंक 1 कोई उठ के जाएगा तो उसे भी एंजाइटी होगी, तो ये नेचुरल एक चीज़ है। तो कुछ कंट्रोल क्या ही कर लोगे इसको। लास्ट के दिनों में अपना रिवीजन करो, रिवाइज करो, ज़्यादा ना पढ़ने की ज़रूरत है अब। और बट आपने बहुत कुछ स्टूडेंट्स के मैंने यहाँ पे कमेंट्स भी देखे हैं, कुछ ने मुझे पर्सनली बोला है कि सर हमारा 1-2 पेपर अच्छा नहीं हुआ है, हमें लगता है मार्क्स कम है। तो ये चीज़ें आप दिमाग से निकाल दो, क्योंकि आपने सब अच्छा किया है इसीलिए आपने मेंस क्लियर किया है। तो ये चीज़ें आप अपने दिमाग से ही निकाल दो कि हमारा कोई पेपर अच्छा नहीं हुआ है, या हमने कुछ ख़राब किया है, या हमारे मार्क्स किसी में कम होंगे तो हम क्या करें क्या नहीं करें। सिंपली और सिंपली अब आपका एक ही फोकस होना चाहिए कि जो हमारा इंटरव्यू है उसको हमने अच्छे से देना है। सोशियोलॉजी में आपको सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ सोशियोलॉजी की, तो आपको जो पहले आपको पता होना चाहिए जो हमारे पर्सपेक्टिव्स हैं, पॉजिटिविस्ट हो गए, नॉन पॉजिटिविस्ट हो गए, इंटरप्रेटिव सोशलिस्ट हो गए, फिनोमिनोलॉजी, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, ये जो हमारे स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, ये आपको सबसे पहले सोशियोलॉजी में पता होने चाहिए। ज़्यादा नहीं, 2-2, 3-3 लाइंस, और इनके मेन थिंकर्स कौन हैं और हाउ दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। नेक्स्ट इज जो आपका है रिसर्च मेथड है। जनरली इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी आपको हल्का सा पता होना चाहिए कि हम डाटा कलेक्ट कैसे करते हैं। बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, कैसे हम कब कौन सा मेथड हमारे लिए बेटर है, किसको हमने यूज करना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे थिंकर्स हैं, ऑलमोस्ट आपका मैक्सिमम इंटरव्यू इसी पे निकलेगा, तो इन्हें बहुत अच्छे से आपने तैयार कर लेना है। और इसमें एक बात याद रखिएगा, कभी भी अगर आप एक थिंकर का क्रिटिसिज्म दे रहे हैं तो ये नहीं बोलना है कि सर मुझे लगता है कि कार्ल मार्क्स ऐसे खराब था या कार्ल मार्क्स ऐसे सही था।
या कार्ल मार्क्स ये है, या वो क्या बोलते हैं कार्ल मार्क्स बहुत अच्छा है, कोई बहुत ही बड़ा फिलोसोफर है। जनरली क्या होता है, जब हम सोशियोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कार्ल मार्क्स एक ऐसा थिंकर है जो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें लगता है कि ये इससे मतलब आज तक जो बात ये कर रहा है इससे बढ़िया बात ही कोई नहीं है दुनिया में। लेकिन आपने अगर उसको क्रिटिसाइज भी करना है या उसके फेवर में भी कोई बात बतानी है तो आपने एक मतलब अपना व्यू दे के नहीं बताना है कि कार्ल मार्क्स को क्रिटिसाइज कौन कर रहा है, आपने उस थिंकर का नाम लेके बताना है कि ये थिंकर सर ऐसा बोलता है कार्ल मार्क्स के बारे में। प्लस इन थ्योरीज का करंट में एप्लीकेशन, ये याद रखिएगा। जैसे हम आंसर भी लिखते हैं अगर, तो हम करंट अफेयर्स उसमें ऐड करते हैं, वही करंट अफेयर आपने इस आंसर्स में भी अपने देना है। क्योंकि थिंकर्स, अब किसी ने आज से 200 साल पहले कुछ कहा था तो प्रेजेंट में उसकी रेलिवेंस कितनी है ये आपको पता होनी चाहिए। स्पेशली एक मैं बोलूंगा, वहाँ पे एक वो बैठे होते हैं हमारे एक्सपर्ट हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, उनका एक फेवरेट फिलोसोफर है लियो बोगार्ट। ठीक है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ अवर सिलेबस, पर इस पे उन्होंने जितने लोगों ने पिछली बार सोशियोलॉजी में इंटरव्यू दिया है ऑलमोस्ट सबसे ये पूछा गया है। तो लियो बोगार्ट कौन है, ये ओनली फॉर सोशियोलॉजी पीपल, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इसका इनकी जो है बेसिकली अमेरिकन सोशियोलॉजी से ये डील करता है। रोल ऑफ मीडिया इन कल्चर के बारे में इन्होंने बताया है। और प्रेजेंटली आप देख लो, अब वो उन्होंने जब बताया था तो प्रिंट मीडिया और टेलीविजन मीडिया के बारे में था, अब सोशल मीडिया इतना आ चुका है। तो ये हल्का सा बस आपने गूगल सर्च कर लेना है कि हु इज लियो बोगार्ट, क्योंकि ये एक फिलोसोफर है, ना आया तो ना आया, लेकिन इस पे कभी अगर आ गया तो ये सर का एक्चुअली फेवरेट है। ठीक है, और पेपर 1 में इसके अलावा हल्का हल्का पावर की जो थ्योरीज हैं वो आपने देख लेनी है, उससे ज़्यादा पेपर 1 में आपको करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर 2 में आप आ जाओ, जो हमारे थिंकर्स हैं, जो मेजर स्टैंड्स हैं हमारे सोशियोलॉजी में, इंडोलॉजी हो गया, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म हो गया, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन है, इनको आप प्रिपेयर कर लेना है। पढ़ा आपने सब हुआ है, बस 2-3 लाइंस में अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज वेस्टर्नाइजेशन, तो आपकी पहले 2 लाइंस क्या होनी चाहिए वो आप प्रिपेयर कर लो। संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, ये फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, क्योंकि जिसने अगर नहीं भी सोशियोलॉजी पढ़ी है उसने भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा। नेक्स्ट, गांधी अंबेडकर का डिबेट हमेशा से सोशियोलॉजी में बहुत हॉट रहता है, ये पढ़ लीजिएगा, मोस्टली अबाउट कास्ट सिस्टम। उसके बाद ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया जो हमारे में आता है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और समवन इज फ्रॉम एसटी, अपना एसटी कैटेगरी से अगर किसी की है तो ये तो खास करके इसको, और जे.एंड.के के जितने ट्राइबल ग्रुप्स हैं और जे.एंड.के की जो ट्राइबल पॉलिसीज हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लें। और जो रिसेंटली अभी हमारा एक एजिटेशन चल रहा है बिटवीन 2 एसटी ग्रुप्स, गुज्जर्स और बकरवाल, उसको देख लें कि वो क्या लड़ाई चल रही है और क्यों चल रही है। नेक्स्ट, आपको कोई खास और क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं होते हैं, बस जो मेजर यही चीज़ें हैं जो सोशियोलॉजी में जो ऑप्शन आएंगे। प्लस इसमें सिर्फ करंट अफेयर से क्वेश्चन आ सकता है कि जो अगर करंट में कुछ हो रहा है तो वो कैसे डील करना है। जैसे मणिपुर किलिंग्स हैं, मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है उसका ट्राइबल जेनेसिस क्या है, आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आने के चांसेस उसमें कम है, आपको सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका पूछा जाएगा। रिलीजियस कम्युनिटीज की जो लड़ाई चल रही है, ठीक है, तो ये इसका आपने सोशियोलॉजिकल व्यू जो आपने पहले से सब पढ़ रखा है। मैं सिर्फ यही बोलूंगा, जो मेन चीजें हैं इनका एक नोटबुक लो और 2-3 लाइंस में लिख लो कि फर्स्ट अगर आपको पूछा गया कि व्हाट इज दिस, तो आपका पहला जवाब क्या होना चाहिए। कम डायरेक्ट टू द पॉइंट, कोई घुमाने की जरूरत नहीं है, कोई फालतू इधर उधर की बातें नहीं बतानी है, सिंपली कम टू द पॉइंट। बस ये इंटरव्यू का एक रूल याद रख लो, सिंपली कम टू द पॉइंट। बस, ना ज्यादा वहाँ टाइम होता है एक क्वेश्चन के लिए आपके पास, ना आपको जरूरत है कि आप इधर की बात सर को कोई बताएं, सिंपली कम टू द पॉइंट जो पूछा गया है। तो सोशियोलॉजी में इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने जो नोट्स बनाए हुए हैं, अपना जो पढ़ रखा है उसे एक बार रिवाइज कर लो ओवरऑल व्यू के लिए। प्लस न्यूज़पेपर्स अपनी कंटिन्यू रखो। जे.एंड.के से रिलेटेड किसी ने पूछा था तो डेली एक्सेलसियर न्यूज़पेपर है, इसको डेली अपने इंटरव्यू तक पढ़ो, क्योंकि कई बार होता है, मेरे साथ ऐसा ही हुआ था एआर के पेपर में। मैं सुबह एक न्यूज़ पढ़ के गया था, कोऑपरेटिव बैंक्स का अराउंड 217 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने इन्फ्यूज किया था, और मैं सुबह से मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था उस दिन, और मेरे से पहला क्वेश्चन ही इसके ऊपर पूछा गया था, क्योंकि सब लोग न्यूज़पेपर पढ़ के आते हैं। जो आपके क्या इंटरव्यू लेने आ रहे हैं वो भी वो न्यूज़पेपर पढ़ के आएंगे, तो वो क्वेश्चन आपको आने के बहुत चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, आपने हॉबीज के ऊपर एक मैं बात कर लूँ कि अगर आप जो मतलब आप बहुत कॉन्फिडेंट हो किसी हॉबी के बारे में, जो आप परस्यू करते हो वही लिखिएगा। अगर आप नहीं कुछ परस्यू करते हो उसे खाली छोड़ दो, बिना मतलब में
कोई भी ऐसी हॉबी मत लिख लो जिसके ऊपर आप क्वेश्चन हैंडल ना कर पाओगे। एक बार ऐसा इंसिडेंट मुझे याद है कि हमने भी सुना ही था, यूपीएससी में किसी ने गार्डनिंग लिख दी कि मेरी हॉबी है, फूलों का एक भी नाम नहीं पता था। तो इस तरीके की कोई हॉबी ना लिखें जिसपे आप क्वेश्चन ना हैंडल कर पाएं या जिसके बारे में आपको पता ना हो। वही हॉबी लिखें जो आप करते हैं, नहीं करते हैं कुछ तो सिंपली छोड़ दो, ठीक है। और किसी ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि आई एम ए सिंपल ग्रेजुएट, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन और मैं बाकी जो मतलब गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ आ रहे हैं उनसे कैसे कम्पीट करूं। तो जो सिंपल ग्रेजुएट है, फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है, 22, 23, 24 साल का, 25 साल का जो इंसान है, उससे पैनल एक्सपेक्ट भी नहीं करता है कि वो कोई बहुत ज्यादा चीजें पढ़ के आया होगा। तो बी वेरी चिल्ड अबाउट, आपने मेंस क्लियर किया है, आप डिजर्व करते हो वहां पे बैठना, आप डिजर्व करते हो सिलेक्शन। तो ये अपने दिमाग से जो भी आपको मतलब आपने धारणाएं बनाए रखी हैं अपने बारे में कि मैं मतलब ये मेरा नहीं होगा या मेरा होगा या नहीं होगा, जिसमें भी आप चल रहे हो वो सब अभी के अभी बाहर निकाल दो। जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक अपने आप को एक केएस ऑफिसर समझो कि मेरी सिलेक्शन हो गई है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन अगर आपका है स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू सोशियोलॉजी या कुछ और, तो आप मेरे से पूछ लो। थैंक यू चेतन सर। एक्चुअली कुछ बच्चों के सोशियोलॉजी से रिलेटेड सवाल थे जो मैंने नोट कर रखे थे। एक तो जी जी ऑफलाइन सर। सेशन में मुझे एक स्टूडेंट मिले थे, उन्होंने मुझे सोशियोलॉजी से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे। तो उनमें से एक जो मुझे रिकॉल हो रहा है, जो आपने क्योंकि मार्क्स का नाम लिया, वो मुझे बोल रहे थे कि सर क्या मुझे अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि आपका फेवरेट कौन है थिंकर, तो क्या मैं मार्क्स का नाम लूँ? मैं मार्क्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। तो मैंने उनसे बोला था कि मैं ये सवाल का जवाब जो है ये चेतन सर से ही पूछ के बताऊंगा, क्योंकि उनसे अच्छा कोई नहीं बता पाएगा। ये है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन एक है कि उन्हीं का एक्चुअली ये था कि उन्होंने 2016 में अपनी जो एजुकेशन है उसको खत्म कर दिया, और उसके बाद अभी तक उन्होंने एग्जाम वगैरह एक दो बार दिया है लेकिन उनका नहीं निकला है। और इन बिटवीन उन्होंने लिखा था कि वो फेंसिंग वगैरह में भी नेशनल्स खेल चुके हैं 2016 में। उसके बाद उन्होंने एज अ हॉबी या जो भी था उसको भी उन्होंने डिसकंटिन्यू किया। तो 2016 से जो वो तैयारी कर रहे हैं, उनका एकेडमिक्स भी 2016 तक ही था, प्लस स्पोर्ट्स हॉबीज वगैरह वगैरह। उसके बाद अभी वो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उन्हें क्या सवाल अगर पूछा गया कि इन बिटवीन आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो उनका ये सवाल था कि सर मैं क्या बोलूं। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन मेरे, एक मार्क्स वाला और ये वाला, जो मैं सोचता हूँ कि आप मतलब इसको अच्छे से बता सकते हो इसका आंसर। थैंक यू विशाल सर क्वेश्चन के लिए। पहला तो क्या है कि फेवरेट थिंकर आपको अगर पूछ ही लेंगे, वैसे तो जनरली नहीं पूछते हैं कि आपका फेवरेट थिंकर कौन है, पर अगर पूछ ही लेंगे तो अगर आपका मार्क्स है थिंकर तो आप बोलोगे मार्क्स, पर फिर उस पर क्वेश्चनिंग के लिए रेडी रहिएगा कि वो बोलेंगे कि मार्क्सिज्म फिलोसफी में जहाँ जहाँ पे इम्प्लीमेंट की गई, क्या ट्रू सेंस में मार्क्सिस्ट फिलोसफी की गई या नहीं की गई। प्लस जब वो फिलोसफी दी गई थी तो जैसा कहा जाता है कि एवरी फिलोसफर इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज टाइम, तो उस टाइम पे जो कंडीशन थी उस हिसाब से वो फिलोसफी उस टाइम पे मान लेते हैं वैलिड थी। तो क्या आप 200 साल के बाद भी वो फिलोसफी अब हमें चलानी चाहिए, नहीं चलानी चाहिए? ठीक है, फिर मार्क्स का अगर आप मार्क्स अपना फेवरेट बता देंगे तो वो आगे से मार्क्स का क्रिटिसिज्म ले आएंगे, फिर आप उसको हैंडल कैसे करेंगे वो आपको देखना है। वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर देख अभी तक तो मेरे से कभी पूछा नहीं गया है, ठीक है, कि फेवरेट थिंकर कौन है। अगर पूछ लिया तो आप बता सकते हैं कि ऐसा है कि मुझे लगता है कि एक इक्वल समाज होना चाहिए सबके लिए, तो इसलिए मुझे लगता है कि मार्क्स की थ्योरी बेटर है। क्योंकि मार्क्स क्या है कि मार्क्स एक एक्सट्रीम फिलोसोफर है, तो एक्सट्रीमिज्म जनरली जो होता है, हम एक ब्यूरोक्रेट के लिए एक एक्सट्रीमिज्म होना जो उसके माइंड में या कोई भी उसके मतलब एक्शंस में, इट्स नॉट वेरी गुड। तो पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा जो आपने बताया गैप के बारे में, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा। मेरा खुद सर एजुकेशन जो है 2015 में कंप्लीट हो गया था, तो इसका मेरे से 1 साल बाद हुआ है और मेरे से 1 साल बाद का इंटरव्यू दे रहा है। तो जनरली ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि आप अपना वो क्या कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि मैं 1-2 साल से ट्राई कर रहा था एग्जाम का, तो मेरा नहीं क्लियर हुआ, मैंने और गवर्नमेंट एग्जाम्स दिए इन बिटवीन। और इस वक्त गवर्नमेंट एग्जाम्स की कंडीशन तो JNK में उन्हें भी पता ही है कि कितने डिले होके बाकी एग्जाम्स चल रहे हैं। तो बोलना है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो अगर अभी तक अगर वो पूछ ले कि अब हायर एजुकेशन क्यों नहीं की, बोलना कि अभी तक मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं इस पे फोकस देना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि एक बार मैं एक दो बार इंटरव्यू फेस कर लूँ, उसके बाद तो मैं फ्यूचर में अगर मुझे चांस मिलेगा मैं जरूर कोई ना कोई एजुकेशन लेना चाहूंगा। तो ये इतना ज्यादा मतलब अफेक्ट नहीं डालता है कि गैप ईयर इतना रहा है या नहीं रहा है, क्योंकि यूपीएससी में भी हमने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका 10-10 साल का भी गैप ईयर रहता है, वो भी आते हैं, वो भी क्लियर करते हैं। तो हाउ यू परफॉर्म ऑन दैट डे, योर पर्सनैलिटी, और नॉलेज का टेस्ट नहीं है, नॉलेज का टेस्ट हो चुका है। ये सारे याद रख लें। अगर आपको लगता है कि हमें क्वेश्चन नहीं आया वहाँ पे तो मार्क्स कम आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमने बहुत
हमने इंटरव्यू दिए हैं, बहुत क्वेश्चंस में आई डोंट नो बोला हुआ है, ठीक है। तो इसकी ये टेंशन लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं है कि नहीं आया तो क्या होगा। सिंपली बोल देना जहाँ नहीं आ रहा है। फैक्चुअल क्वेश्चन अगर आपको आ गया, आप बोल दो आई डोंट नो, दैट इज वेल एनफ। कोई उसमें आपको मतलब वो नहीं है कि इसके आपके मार्क्स कटेंगे कि फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आता है कई बार, उसमें क्या है। लेकिन कहीं आपका जो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है, वहाँ पे अगर आप बोल दो कि मेरा कोई ओपिनियन ही नहीं है, तो वो बात नहीं जमती है कि मतलब ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको अपना ओपिनियन रखना ही पड़ेगा, चाहे आप मतलब किसी भी तरीके का ओपिनियन रखें। और एक्सट्रीम ओपिनियंस प्लीज अपने मतलब अगर आपके दिमाग में है भी कोई, तो एक्सट्रीम ओपिनियंस अपने अभी थोड़ी देर के लिए अपने पास ही रखें। वहाँ पे जाके एक कंप्लीट जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट आपने देखा होगा इंटरव्यू देते हुए या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किस तरीके से एक बैलेंस्ड व्यू देते हैं, तो सिंपली वही अपना बैलेंस्ड व्यू आप भी रखें। और चाहे आपका जो भी व्यू हो, उसे मतलब थोड़ी देर के लिए आपको दबाना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कोई फेक करें, क्योंकि आप अगर कोई भी चीज़ फेक करेंगे इंटरव्यू में, आप डैफ में कुछ फेक करेंगे या बोलने में फेक करेंगे, तो वो 2 मिनट में पकड़े जाओगे, ठीक है। ओके जी सर, थैंक यू। तो चेतन सर के इनसाइट्स आप लोगों ने सुने, स्पेशली विद रिलेशन टू सोशियोलॉजी। उन्होंने बताया कि अगर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो 15 मिनट आपके वहीं लगेंगे, तो नॉर्मली 20-25 मिनट्स होते हैं, तो उसमें से मोर देन 50 और 60% ऑफ योर इंटरव्यू विल रिवॉल्व अराउंड सोशियोलॉजी। प्लस सर ने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं कि थिंकर्स, थॉट्स, प्रोसेस जो भी हैं उनको आपने अच्छे से एड्रेस करना है। प्लस जो मेन सबसे पॉइंट है कि डायरेक्टली आपको पॉइंट पे आना है, आपको आगे पीछे नहीं घुमाना है, बिल्कुल एग्जैक्टली जो चीज़ पूछी गई है उसी को बताइए। जो नहीं आता है यू कैन ऑलवेज से कि मैंने इसको पढ़ा है, अभी मुझे रिमाइंड नहीं हो रहा। एक होता है कि मुझे नहीं आता, एक है कि मैंने पढ़ा था लेकिन अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा। ये थोड़ा सा बेटर है, आप इसको बोल के थोड़ा सा एक पॉजिटिव वे में अपने इंटरव्यू को लेके जा सकते हैं। तो थैंक्स चेतन सर अगेन। तो सर बहुत एक्टिव हैं सर, आपके जितने भी सोशियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलरेडी ग्रुप में हैं, तो सर डे 1 से उन सबको एड्रेस कर रहे हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू चेतन सर एंड आई बिलीव कि आगे भी ऐसे ही बच्चों को गाइड करते रहेंगे। तो रजत सर, आई विल हैंड ओवर इट टू यू। तो रजत सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। Thanks, Chetan sir. So we have Dr. Sahil Datta and Dr. Chirdeep Malhotra. Both of these guys are from medical science background, और ये हमारे दोनों बैचमेट्स हैं। So I request Dr. Chirdeep to put some insights on their interview experience and किस टॉपिक्स पे ज्यादा मेडिकल साइंस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, so that these guys came to know about that. So Dr. Chirdeep sir, hand over to you. वेलकम सर। Hello, sir. Hello, everyone. Am I audible? Yes sir, you are audible. So, hello, everyone. I am Dr. Chirdeep. तो मतलब मेरा आई हैव डन ग्रेजुएशन इन मेडिकल साइंसेज फ्रॉम जीएमसी जम्मू, और मेरा ऑप्शनल भी मेडिकल साइंस ही था। और जो मेरे बैचमेट है डॉक्टर साहिल, तो उनका ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि वेदर यू हैव लाइक योर ऑप्शनल एज एंथ्रोपोलॉजी, मेडिकल साइंस या कुछ और भी आपका ऑप्शनल है, तो पिछली बार इंटरव्यूज में ऐसे था कि 80 to 90% ऑफ इंटरव्यूज दैट वाज बेसिकली फ्रॉम द अंडर ग्रेजुएट डिग्री ओनली। तो उन्होंने एमबीबीएस के ही क्वेश्चंस पूछे थे मतलब मोस्टली। तो मतलब यही है सबको, मतलब कि अगर आपका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल होगा या कोई और ऑप्शनल होगा तो आपसे पूछ सकते हैं कि आप उसको कैसे रिलेट कर सकते हो या कुछ, बट 70 to 80% ऑफ टाइम्स मतलब मोस्टली एमबीबीएस के ही क्वेश्चंस पूछेंगे वो। तो मेरा इंटरव्यू जो था, मेरे इंटरव्यू में देयर वर 5 मेंबर्स। तो 3 जेकेपीएससी के मेंबर्स थे और देयर वर 2 एक्सपर्ट्स, बट नन ऑफ देम वर डॉक्टर्स आई थिंक। बट उन्होंने काफी क्वेश्चंस मेरे से पूछे मेडिकल साइंसेज के, एंड कुछ मेरे ख्याल उन्होंने नेट से सर्च किया हुआ था, और कुछ ऐसे था कि मतलब जैसे किसी की फैमिली में कोई डिजीजेस हो या कुछ उन्होंने कुछ सुना हो, तो वो सब उन्होंने पूछा काफी। तो यही है कि जैसे टॉपिक्स हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, बीपी, फिर थायराइड, ट्यूबरकुलोसिस, तो इसका तो आपको सब कुछ ही मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो लेमैन से भी वो एक्सपेक्ट करते हैं, तो डॉक्टर्स से तो वो पूछेंगे ही, और उनका फोकस मोस्टली इन्हीं टॉपिक्स पे रहता है। और
फिर मतलब जैसे डायबिटीज और हाइपरटेंशन, इस सब को आपने इनकी फार्माकोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, सर्जिकल ट्रीटमेंट, अगर बच्चों में है डिफरेंट पैथोलॉजी और मतलब डिफरेंट मतलब पीडियाट्रिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, पैथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब आपने मतलब देखना है उसमें। एंड मेरे इंटरव्यू में जो मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे, तो मोस्टली मैं पहले ये बता देता हूँ कि मतलब जो 10% मेडिकल साइंस का नहीं था वो मैं बता देता हूँ। तो एक सर थे, रजा सर, तो उन्होंने फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे थे मेरे से कि पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर्स हैं, हिमाचल की लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर्स हैं, हिमाचल का चीफ मिनिस्टर कौन है, फिर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स, डीपीएसपीज। तो मोस्टली मुझे ये नहीं आते थे, तो मैंने उनको बोल दिया कि सर आई डोंट नो। फिर एक दो एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने मेरे से कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और एक दो ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे। तो यही था मेरा जो आउट ऑफ मेडिकल साइंस था। बाकी पूरा इंटरव्यू इट वाज बेस्ड ऑन माय एमबीबीएस सब्जेक्ट्स ओनली। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चंस मेरे से पूछे थे, तो डर्मेटोलॉजी से मेरे से लाइकन प्लेनस, सोरियासिस, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे थे। फिर और हाँ, मतलब ये भी है कि जैसे अगर आपने कहीं पे वर्क किया हो किसी डिपार्टमेंट में, फॉर एग्जाम्पल मेनी ऑफ द डॉक्टर्स दे आर वर्किंग एज मेडिकल ऑफिसर्स इन पीएचसीज या फिर किसी और हॉस्पिटल में, जीएमसीज जो एसोसिएटेड जीएमसीज हैं जैसे उधमपुर, रजौरी, डोडा। तो यहाँ पे तो यू कैन टेल देम द डिपार्टमेंट दैट यू आर वर्किंग इन या फिर जहाँ आपने वर्क किया हुआ है। तो मोस्टली फिर वो डायरेक्ट आपका इंटरव्यू हो जाता है वहां पे कि वो उस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछेंगे और मोस्टली आप उसको आंसर कर पाओगे। और ये भी है कि बहुत बार वो टॉपिक्स नहीं पूछते हैं, मतलब उनका इंटरेस्ट होता है कि मतलब आपके पास किस टाइप के पेशेंट्स आते हैं, मतलब आप उनको कैसे ट्रीट करते हो, आप उनको कैसे हैंडल करते हो। तो उस पे आपका इंटरव्यू मतलब मोस्टली बेस्ड रहता है। तो जैसे मैंने मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन के डिपार्टमेंट्स में काम किया हुआ था, तो देयर वाज दिस सर, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके पास किस टाइप के केसेस आते हैं, आप कैसे उनको हैंडल करते हो। फिर उसके बाद जैसे इमरजेंसी मेडिसिन में ट्राइएज करते हैं हम, कलर कोडिंग ऑफ पेशेंट्स, तो उसको उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेट करके पूछा, मतलब वो सारा पूछा उन्होंने। उसके बाद फिर उन्होंने ये पूछा मेरे से जैसे कि अगर आप किसी हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर हो तो आपको वहां पे इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट मतलब सेटअप करना हो, तो आप कैसे करोगे, मतलब व्हाट विल बी द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स, मतलब ऐसे उनका था पॉइंट कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हो तो आप क्या क्या मतलब जैसे इक्विपमेंट्स लाओगे, आप यू विल हायर द फैकल्टी एंड द ट्रेनिंग स्टाफ, वो सब। फिर उन्होंने मेरे से एम्बुलेंस पे भी क्वेश्चन पूछे कि जैसे इमरजेंसी मेडिसिन में एम्बुलेंस का मतलब होता है, मतलब एम्बुलेंस होनी चाहिए हॉस्पिटल्स में, ऐसे ऐसे। तो फिर जैसे वो फिर काफी डेप्थ में भी जा रहे थे, बट अगर आपको कुछ नहीं आता हो तो आप बोल सकते हो उनको कि मुझे नहीं पता है। जैसे उन्होंने मेरे से पूछा था कि एम्बुलेंस ड्राइवर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब जो इमरजेंसीज को हैंडल कर रहा हो। तो मोस्टली ऐसा है कि 10th पास होना चाहिए, क्योंकि पीछे तो उसको पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स नहीं देखना है, तो उसने तो ड्राइव ही करना है, उसने पीछे आके नहीं करना है। तो मैंने उनको बोला कि 10th होनी चाहिए। तो सर वाज लाइक कि नहीं, उसके पास कुछ मेडिकल डिग्री भी होनी चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ की या कुछ ऐसे। तो आई सेड, मतलब मुझे पता था कि ऐसा नहीं है, बट मैंने बोला कि हाँ सर, मे बी आई डोंट नो। तो मतलब आपको थोड़ा यील्ड भी कर देना चाहिए उनको बहुत टाइम, मतलब यू डोंट हैव टू आर्ग्यू विद देम, मतलब क्योंकि मार्क्स तो उन्होंने ही देने हैं। तो मतलब जैसे बहुत बोला है, मतलब मेरे काफी बैचमेट्स और जो पहले पैनलिस्ट थे, तो आपको मतलब थोड़ा वो ये कि मतलब उनके साथ वो नहीं, कन्फ्रंटेशन नहीं करनी है ऐसे। इफ दे आर सेइंग समथिंग तो यू कैन पोलाइटली से टू देम कि ऐसा है। फिर यही थे क्वेश्चंस। और हाँ, मतलब जैसे मेरे से ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछे, बट काफी कोलीग्स से मेरे ये सब क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे थायराइड स्टॉर्म हो गया, ऑपरेशन टेबल पे पेशेंट है, तो मतलब आप उसको कैसे हैंडल करोगे अगर उसको कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई, थायराइड स्टॉर्म या कुछ। तो ये सब तो हम जनरली अपनी प्रैक्टिस में या इंटर्नशिप में या स्टडीज में देखते ही हैं, तो यू कैन मतलब इजिली आंसर दीज क्वेश्चंस। तो यही था। और हाँ, जैसे कुछ कुछ और टॉपिक्स जो वो पूछते हैं वहां पे, तो जैसे मेडिसिन में शॉक हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, ब्लड ग्रुप्स हो गया, तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स मतलब उनको भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज होती है, बट वो उसका थोड़ा डेप्थ में जाके नेट से सर्च करके पूछ लेते हैं। बाकी और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ सब्जेक्ट्स बहुत ब्रॉड हैं, जैसे मेडिसिन, सर्जरी, तो ये तो इनकी बहुत बड़ी बड़ी बुक्स हैं, तो यू कांट स्टडी ईच एंड एवरी टॉपिक। तो जो जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने पहले ही बोला, डायबिटीज, हाइपरटेंशन
और ये सब ट्यूबरक्लोसिस, तो ये सब आप पढ़ सकते हो। बट जो जो शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं जैसे रेडियोलॉजी हो गया, एनेस्थीसिया, डर्मेटोलॉजी, तो इनमें कुछ कुछ टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको इनको गो थ्रू करके जाना चाहिए। तो या दिस वाज फ्रॉम माय साइड। अगर और भी किसी को कोई मतलब डाउट है या कुछ क्वेरी है तो दे कैन आस्क इन द ग्रुप, तो आई विल आंसर ऑल ऑफ दोस। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू चिरदीप और सर एक्चुअली मेरा आपसे एक सवाल। हाँ जी यस। स्पीकर 1 मिनट स्पीकर का ऑन ऑफ कीजिए। सर एक्चुअली एक एस्पिरेंट है, शायद आप लोग उन्हें जानते हैं, मेरे ख्याल से डॉक्टर साहिल उन्हें जानते हैं, मेरे भी नोन में है काफ़ी देर से। उनका वो एक्चुअली उनका 3rd इंटरव्यू है। 2 इंटरव्यू उनके हो चुके हैं और उनका पहले मेडिकल था और अब उन्होंने बेसिकली एमबीबीएस के बाद उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी लिया हुआ है, नॉट एमबीबीएस सब्जेक्ट या मेडिकल सब्जेक्ट। तो 2 इंटरव्यूज वो दे चुके हैं, दिस इज हिज 3rd इंटरव्यू और लक ऐसा है कि उनका फर्स्ट इंटरव्यू है। तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं कि उन्हें मतलब ऐसे, क्योंकि टाइम बहुत कम है और मुझे आई थिंक कि उनका एक्सपीरियंस भी बहुत रिच नहीं है, उन्होंने काफ़ी देर से मतलब प्रैक्टिस नहीं करी है, एग्ज़ाम की ही प्रिपरेशन करी हुई है। तो एनी पॉइंट्स विच यू एंड डॉक्टर साहिल वांट टू गिव हिम, या अभी इस शॉर्ट ड्यूरेशन में वो क्या करें, किस तरीके से मतलब प्रिपेयर करें अपने आप को? So I know who you are talking about, तो हमारे सीनियर ही हैं। तो nowadays he is working in GMC उधमपुर। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको मतलब वहां जाके मतलब जैसे बोलना चाहिए कि आई एम वर्किंग इन GMC उधमपुर, अपने इंट्रोडक्शन में ऐसे बता देना चाहिए इन द डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी। तो जैसे अगर वो इंटरव्यू डायरेक्ट हो सके सर्जरी के कुछ टॉपिक्स के अराउंड, तो दैट वुड बी बेटर। तो मुझे तो ये लगता है कि उनको ये जाके वहां बोलना चाहिए। फिर सर्जरी के कुछ कुछ टॉपिक्स या मतलब उनको ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए कि कौन कौन से पेशेंट्स आते हैं उनके सर्जरी डिपार्टमेंट में, कौन कौन सी सर्जरीज हो रही हैं वहां पे, तो इसके अराउंड वो थोड़ा अपना इंटरव्यू मोल्ड कर सकते हैं। बाकी अभी इतना जैसे टाइम तो नहीं है, बट जैसे बहुत चीजें होती हैं, मतलब बहुत अगर मेडिकल साइंस के रिलेटेड आएंगे क्वेश्चंस तो वो नॉर्मली आंसर कर ही देंगे। तो जैसे जो मैंने आपको अभी टॉपिक्स बताए थे ना, थायराइड स्टॉर्म, टैकीकार्डी, ये सब, तो ये लास्ट टाइम उनको ही इंटरव्यू में पूछे हुए थे। तो और हाँ ये है सर कि जैसे कुछ कुछ और टॉपिक्स हो गए, जैसे हमारा जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, जैसे जो PHCs हैं, CHCs हैं, फिर सब डिविजनल हॉस्पिटल्स हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, फिर उसके बाद मतलब जो टर्शरी केयर सेंटर्स हैं GMCs, फिर उसके बाद हायर सेंटर्स। तो इसमें भी जैसे बहुत बार अगर कोई मेडिकल ऑफिसर हो तो वो ये सब क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि जैसे मतलब जो पेरिफेरल हेल्थ सेंटर है या सब सेंटर है, CHC है, तो उसमें कौन कौन से मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं। सिर्फ PHC में एक ही डॉक्टर होता है, CHC में 3-4 स्पेशलिस्ट होते हैं, मतलब ऐसे। फिर ये भी होता है कि कहाँ पे कितने बेड्स हैं, जैसे टर्शरी के हॉस्पिटल में क्या पता 200 बेडेड 500 बेडेड होगा, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है उसमें 20 बेड्स ही होंगे। तो ये सब टॉपिक्स हैं जो थोड़े ब्रश थ्रू कर सकते हैं। तो बाकी तो अगर कुछ भी ऐसे पूछा जाए जनरली तो आई थिंक ही वुड बी एबल टू आंसर, मतलब बट ऐसे है कि इन्हीं टॉपिक्स को ब्रश अप कर सकते हैं जो मेन प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं। और जैसे कुछ सिंड्रोम्स हो गए, जैसे पिछली बार वो पूछ रहे थे, जैसे जॉगरन सिंड्रोम और कुछ कुछ ऐसे डिजीजेस हैं तो उनके नाम ही ऐसे हैं, तो उनकी स्पेलिंग्स वो सब पूछ लेते हैं, तो ही कैन मतलब उसके रिलेटेड वो थोड़ा पढ़ सकते हैं। तो बाकी तो मुझे ये लगता है कि एक उनको यही करना चाहिए कि ऐसे जाके डायरेक्ट थोड़ा बोलना चाहिए कि और उनका ऑप्शनल भी एंथ्रोपोलॉजी है, तो एंथ्रोपोलॉजी से लिंक करके वो कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उनको कि मेडिकल साइंस विद एंथ्रोपोलॉजी, जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो दोनों में सेम है, क्लेफ्ट लिप या कुछ ऐसे करके, तो वो सब। बट बाकी अगर वो ऐसे करें कि आई वर्क इन द डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी एंड ऑल, तो अगर उस पे इंटरव्यू मोल्ड हो जाए तो दैट वुड बी बेटर आई थिंक। तो जी थैंक्स सर। नाउ डॉक्टर गुड इवनिंग एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर साहिल हियर। मैं अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि आई हैव डन माय MBBS फ्रॉम GMC जम्मू। आफ्टर दैट आई वर्कड एज अ डॉक्टर इन न्यू दिल्ली, और उसके बाद आई वर्कड एज अ मेडिकल ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ फॉर 2 years।
मैंने यहाँ पे 2 इंटरव्यूज दिए हैं, लास्ट इंटरव्यू और ये वाला दिया था। तो दोनों इंटरव्यूज जो थे वो दे वर क्वाइट डिफरेंट। जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था वो जनरल लाइन पे थोड़ा ज़्यादा था, डैफ ओरिएंटेड ज़्यादा था। जो सेकंड वाला इंटरव्यू था वो थोड़ा जो है मेडिकल साइंस के ऊपर बेस्ड था। तो मेडिकल साइंस के रिलेटेड डॉक्टर चिदीप ने काफ़ी डिटेल में जो है डिस्कस किया है, तो मैं वो चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा, मैं वही कुछ ऐड करूँगा जो थोड़ा बहुत एडिशन हो सकता है। तो इन बोथ द इंटरव्यूज माय मार्क्स वर 183, लास्ट इंटरव्यू में 183.22 एंड दिस ईयर इट वाज 183। तो कुछ बेसिक जो लर्निंग्स वहाँ दोनों इंटरव्यूज से मुझे मिली एज अ मेडिकल ग्रेजुएट, तो वो मैं शेयर करना चाहूँगा। पॉइंट नंबर 1 कि आपका बैकग्राउंड से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, वो आएंगे ही आएंगे। दूसरा ये है कि अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस हैं। और तीसरा जो मैंने वहाँ पे जो लर्निंग मेरा एक्सपीरियंस रहा वो ये कि यू हैव टू बी वेरी हम्बल, वेरी रिस्पेक्टफुल टू द मेंबर्स एंड वेरी ऑनेस्ट। ये कुछ बेसिक चीज़ें जो मेरी 2 एक्सपीरियंसेस जो मेरे लर्निंग्स रही वो ये थी। तो मैं इसी ईयर के इंटरव्यू को थोड़ा सा डिस्कस करूंगा क्योंकि 2 इंटरव्यूज हैं, दोनों डिफरेंट हैं, तो टाइम वो ज़्यादा होगा। तो इंट्रोडक्शन में ही मैंने अपने बारे में बताया था, जैसे मैंने यहाँ इंट्रोडक्शन था मेरा सेम वही था। उसमें एक चीज़ मेरी एडिशन थी कि मैंने जो दिल्ली में काम किया था वो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम किया था। तो मैंने इंट्रोडक्शन में ही कहा था कि सर आई स्टडीड MBBS फ्रॉम GMC जम्मू, आफ्टर दैट आई वर्क as a resident doctor in the Department of Cardiology in a government super specialty hospital in Delhi. उसी चीज़ का ये हुआ कि उन्होंने कार्डियोलॉजी का वहाँ से पिक किया। तो, मेरा ऑप्शनल जो एंथ्रोपोलॉजी था तो चेयरमैन सर ने पहले वहीं से ही स्टार्ट किया था कि एंथ्रोपोलॉजी और मेडिकल साइंस का क्या लिंक है, और उसके बाद सर ने कहा था कि कौन सी फील्ड्स हैं आपकी मेडिकल साइंस की जो एंथ्रोपोलॉजी में हेल्प करती हैं। और लाइकवाइज सर ने पूछा कि अब आपने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा है तो आपको क्या लगता है कि एंथ्रोपोलॉजी की नॉलेज मेडिकल साइंस में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एनालिटिकल क्वेश्चंस थे, दोनों को अच्छे से जस्टिफाई किया था। उसके बाद सर ने एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के हिसाब से मुझे उसमें पूछा था कि आप मेडिकल साइंस की नॉलेज से आपको कैसे हेल्प मिलती है, आप कैसे कर सकते हैं उसमें। फिर उसके बाद सर ने कहा था कि जो ह्यूमन स्केलेटन आप बड़े अच्छे से आपको पता है उसके बारे में, तो आप कंपेयर करके मुझे बताइए एप के और ह्यूमन स्केलेटन में क्या डिफरेंसेस रहते हैं मेजर। और उसके बाद जो है सर ने शिफ्ट किया था मेंबर्स की तरफ, तो वहाँ से जो क्वेश्चंस शुरू हुए थे कि ओके यू हैव वर्कड इन कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, तो हाइपरटेंशन क्या होता है वो आप बताइए। हाइपरटेंशन के बाद उस पे आए थे कि हाइपरटेंशन से क्या क्या और रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कौन सी इमरजेंसीज ऐसी हो सकती हैं जिसमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, स्ट्रोक, किडनी डैमेज, इस तरह की जो भी चीज़ें थी वो मैंने बताई। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके मैकेनिज्म क्या हैं, और वो भी जो है मैंने उनके साथ डिस्कस किया, मतलब बताया। उसके बाद क्वेश्चन जो है नेक्स्ट मेंबर को शिफ्ट हुए, उन्होंने भी कुछ मेडिकल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे और वो भी कार्डियोलॉजी रिलेटेड ही थे। जैसे सर ने जो है मुस्तफा सर थे, उन्होंने पूछा कि ओके आप बताओ कि आपने कार्डियो में काम किया है, छोटा बच्चा आपके पास आता है, आप उसको स्टेथो लगा के देखते हो, तो स्टेथोस्कोप पे आपको लब डब करके 2 आवाज़ें सुनाई देती हैं, वो क्या होती है। तो वो एक्सप्लेन किया मैंने कि वो वाल्व से आती है, आवाज़ कैसे आती है। फिर सर ने कहा अगर कोई एडिशनल आवाज़ आती है, तीसरी आवाज़ आती है या कुछ आती है, उसको क्या कहते हैं। कोई एबनॉर्मल आवाज़ आती है तो उसको क्या कहते हैं। तो उसमें मैंने कहा कि सर मर्मर हो सकता है, कुछ अलग चीज़ें हो सकती हैं। फिर सर मर्मर पे चले गए कि मर्मर क्यों होता है, कैसे होता है। फिर अगर उन्होंने कहा कि आपने स्टेथो लगाया, आपने सुना इसमें मर्मर आ रहा है छोटे बच्चे में, आप नेक्स्ट क्या उसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजेंगे, तो उसमें हम लोग इकोकार्डियोग्राफी के लिए भेजते हैं। मैंने कहा सर कि उसमें इकोकार्डियोग्राफी करेंगे। फिर उसके बाद सर ने उसी पे आगे क्वेश्चन पूछा कि क्या बच्चे की इको और एक अडल्ट की इको में फ़र्क होता है। तो मैंने कहा हाँ सर होता है। उन्होंने कहा क्या फ़र्क होता है, मैंने कहा सर प्रोब का फ़र्क होता है। फिर सर ने कहा क्या उसमें इमेज का भी कुछ फ़र्क होता है। तो वो लाइकवाइज वो थोड़ा डेप्थ में चले गए थे जो मैंने उनको आंसर किया। उसके बाद जो डिफरेंट नेक्स्ट मेंबर के पास वो गए थे, उसमें
मैम थे, हमारे एक्सपर्ट मेंबर थे, उन्होंने मुझे पूछा था कि आरुषि मर्डर के रिगार्डिंग कि एज अ डॉक्टर आप क्या उसमें व्यू रखते हैं कि आरुषि जो थे वो उनके पेरेंट्स जो थे वो डॉक्टर्स थे, तो क्या एज डॉक्टर्स वो उसका मर्डर कर सकते? और दूसरा उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर आप एज अ डॉक्टर क्या समझते हैं? तो जो इनफैक्ट जो थोड़े साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे, वो एज अ डॉक्टर उन्होंने पूछने की कोशिश की थी। तो मैं इसीलिए यही जो भी मेडिकल साइंस बैकग्राउंड से हैं, चाहे उनका ऑप्शनल मेडिकल साइंस है या कोई भी दूसरा ऑप्शनल है, तो एज अ डॉक्टर आपको पूछने की वो कर सकते हैं, तो इसलिए वो उस थॉट प्रोसेस से हमें प्रिपेयर करनी चाहिए चीज़ें। तो ओवरऑल जो था मेडिकल साइंस को लेके यही था। बाकी जो टॉपिक्स हैं वो डॉक्टर चिदीप ने बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं कि कौन से टॉपिक्स पे हम फोकस कर सकते हैं। मेरी तरफ से यही छोटी सी सजेशन रहेगी कि आप उनको पहले कुछ हिंट दें ताकि वो वहां से पूछें, बिकॉज मेडिकल साइंस इज वेरी वास्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। वो कहीं से उठा के पूछ लेंगे तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो अगर थोड़ा सा उनको एक फील्ड मिल जाता है, चाहे वो आपके बैकग्राउंड से हो, आपने कहीं काम किया है उसमें, या आपका इंटरेस्ट है किसी सब्जेक्ट में स्पेसिफिक, तो आप अगर उसको मेंशन कर लेते हैं तो वो उसी सब्जेक्ट से मोस्ट प्रोबेबल ऐसा चांस रहता है कि मोस्ट प्रोबेबली उसी से वो पूछते हैं, तो वो प्रिपेयर करके अच्छे से जाया जा सकता है। अदर देन दैट जनरल वो कुछ भी पूछ सकते हैं, वो तो कह सकते हैं। जैसे लास्ट इंटरव्यू मेरा बिल्कुल अलग था। तो ओवरऑल आई थिंक यही मेरी तरफ से रहेगा। अगर कोई स्पेसिफिक होगा क्वेश्चन या कुछ तो आई विल एड्रेस दैट इन द ग्रुप। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thanks, Dr. Sahil Datta, for sharing his insights with us. तो सर ने जितना भी बताया उनका जो मेन क्रक्स मुझे समझ में आया है, सेम जो इनसे पहले भी बताया हमें, कि आपको मेडिकल बैकग्राउंड की, अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से या कोई भी इस तरीके का, जैसे आप और भी हैं जिनके सब्जेक्ट्स काफ़ी वास्ट हैं, तो आपको उन्हें कोई हिंट देना पड़ेगा, अपने इंटरव्यू को कोई डायरेक्शन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे सर ने कार्डियो का बताया, या अगर बताया कि अगर कोई कहीं पे एमओ है तो सर्जरी में काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप उनको बता के अपना टिल्ट करके लेके जा सकते हो, क्योंकि कुछ ऑप्शनल्स ऐसे हैं कि उसमें तो कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सेम गोज विद हॉबी। जैसे आप लोग हॉबी लिखते हैं तो बहुत ओपन एंडेड लिख देते हैं। जैसे कल मैं देख रहा था किसी ने लिखा है जस्ट कुकिंग। ठीक है, तो कुकिंग में कुछ भी पूछ सकते हैं, या लिसनिंग म्यूजिक, तो लिसनिंग म्यूजिक या वॉचिंग मूवीज, जैसे शिवेक सर ने भी आज हमें बताया कि उन्होंने लिखा वॉचिंग इंडियन मूवीज। ऐसे ही जैसे मैंने लिखा था वॉचिंग वेब सीरीज, तो मैं वेब सीरीज तो ऑलमोस्ट सारी ही देख लेता हूँ, लेकिन फिर मैंने स्कोप लिमिट करने के लिए उसमें से साई-फाई कर दिया। तो मेरा पर्सनली ये रहता था कि उनके नॉलेज में मैं कुछ भी थोड़ा सा उनको एनलाइटन कर दूं, तो शायद मुझे मार्क्स मिल जाए। तो मुझे ऐसा लगता, मतलब मुझे कोई ऐसा एरिया चूज करना था उनको वे आउट देने के लिए कि वो यहाँ से मुझे सवाल पूछे। तो अगर मैं इंडियन वेब सीरीज या कुछ वैसा लिखता तो डोमेन बहुत वाइड हो जाता। तो अगर मैं उन्हें बस इतना ही बता दूं कि साई-फाई वेब सीरीज, तो हो सकता है कि उन्होंने साई-फाई में मैं उनको कुछ नया बताने की कोशिश करूं या नया बता दूं, जिससे उनकी नॉलेज में कुछ चीजें एनहांस हो जाए। तो गाइज